when we start preparing, each and everyone will face obstacles. Their syllabus will not get finished, their answers will not be okay, prelims test score will be very low. मतलब जैसा सिक्स्थ अटेम्प्ट में फील होना चाहिए वैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में बस फील दिस होगा इज योर तो सही लास्ट है। अटेम्प्ट। बहुत ही सिंपल एग्जाम बना सकते हैं। वी ओनली स्टिक टू सिलेबस एंड पीवाईक्यू। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव मेमोराइज्ड इट, आई विल गो थ्रू द सिलेबस, आई विल गो थ्रू द पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन। सर वही एक तो रेलेवेंट जो प्री और मेंस के बीच में टाइम होता है, उस टाइम को आई यूटिलाइज्ड वेरी वेल इन ऑल ऑफ माय अटेम्प्ट्स। स्कोर्ड ऑलमोस्ट एवरेज, अबव एवरेज इन ऑल द पेपर्स। सर टेस्ट पर से जो प्रॉपर 2 आवर्स का टेस्ट है, दैट आई स्टार्टेड इन फेब्रुअरी ओनली, आई थिंक आई मेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बट एंड में जाके वो इतने ज़्यादा बल्कि हो गए थे कि आई कुड नॉट यूज देम बिफोर प्रीलिम्स। सो आई रेड दोस, फाइनली वो PT 365 आई रेड इट। और दूसरा एक और क्वेश्चन, मेंस में आंसर राइटिंग से काफ़ी डर लगता है। यही माइंडसेट है कि हम ऐसा समझते हैं कि यूपीएससी कुछ अलग है, कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी चाहिए दुनिया की, ऐसा नहीं है। एंड डू नॉट रिलाई ऑन कि 100% सिलेबस खत्म होगा तभी मैं लिखूंगा। इफ यू आर डन विद लाइक 60-70% ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, एंड लास्ट के 1 मंथ में सर मे बी अ वीक बिफोर आई स्टॉप गिविंग टेस्ट ऑफ एनी कोचिंग टेस्ट, बट उससे पहले तक आई वॉज गिविंग टेस्ट एंड आई वॉज मेकिंग श्योर डूइंग दैट एनालिसिस। वी एक्चुअली forget the simplicity of the exam. We run after multiple sources but forget about the syllabus and PYQ. Good evening. How are you all? It gives me immense pleasure to invite Miss Ayushi today amongst all of you. Ma'am has secured rank 7 in UPSC CSC 2024. Ayushi is many things, but most of all, a strong and determined mindset, right? This is reflected in her journey. She was born in Gwalior, Madhya Pradesh, from where she did her schooling till class 10th. Here, moved by the love for mathematics, she decided to pursue her graduation from IIT. She prepared for the same by coming to Delhi. She was managing here, living alone. She managed going to school and her preparation for IIT all alone, and was able to secure a good rank and went on to pursue bachelor's in technology from electrical engineering, IIT Kanpur. Post this, she also worked with McKinsey for some time. Here, moved by her mother's compassionate nature, she decided to pursue a career in civil services. For this, she went on to prepare in an online mode from her home itself. In her very first attempt, she was able to clear the UPSC CSC with a rank of 188, and here she was given the opportunity to serve the country as an IPS officer. In the second attempt, she went on to improve her rank, and this time she secured rank 97. And here we have, in her third attempt, she has secured the rank of 7, and now she's going to become an IAS officer. Please give a huge round of applause. Before I give on the dice to Himanshu sir for the moderation of the talk, I'll ask our esteemed faculty, the only name for sociology, Smriti ma'am, to come on and please felicitate her. Please give a huge round of applause. I would request Himanshu sir now to please felicitate ma'am with the pot. Sir is a modern Indian history and world history faculty at Vision IAS, himself being an ex-IRS officer as well. Thank you so much. Now I would invite sir and ma'am to have the conversation for today. Thank you, sir. So welcome everyone and welcome, right, Ayushi. So Ayushi, in her first attempt, right, she secured already rank 188. Then in second attempt, she got 97 rank, and this time she is rank 7, right? So what we look up to is a level of consistency which is kind of like unmatched. Earlier also, she has been, a graduate from IIT Kanpur.
right? And so therefore that's a brilliant career which she has had. She has also worked in the private sector in McKinsey, one of the most reputed consultancy firms, right, among the big four, right? So welcome, Ayushi, and hope to gain a lot from your experience and your knowledge. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so to begin with, you're from Gwalior. So, and you are from technical background, then you went to the private sector, corporate sector. So, what exactly motivated you that you should take up civil services? Was it like a childhood dream, like it is for many of the aspirants, or like some experiences of your childhood and early upbringing that resulted in this choice? Sir, during my childhood, I was somewhat aware that IAS exists, but I was not fully aware of the nature of the service and what it entails. Growing up, I went to IIT, and there I found many seniors preparing for the services. I was very actively involved in co-curricular activities and many activities of the Gymkhana, students' Gymkhana also in the college. But still, I was not very sure about the services. So I decided to work in the private sector first and be completely sure that this is what I want to do. One thing I knew about my personality was that I really like to work with the public. I wanted to work in the field, work something for the public. And at that point of time, after working in the private sector, civil services seemed to be the best option. My first two choices were administration and policing only. And both of these services offered me what I wanted to do, work with the public, for them, amongst them, which aligned with my goals and the kind of personality I have. So overall, across many years, slowly, that decision built up, and finally, I decided to go for it. But in India also, since 1991, the private sector has grown a lot, and I think McKinsey also has a lot of projects in India, and so therefore a lot of services are provided by the private sector also. And McKinsey like companies also worked with government also, right? BCG, McKinsey. So why did you feel that a better outlet would be for public service would be joining the civil services rather than working with the private sector, which has great amount of funds also, right, which shape public policy also? So why shift from McKinsey to public service? Sir, I believe that private sector is a great way of working for the nation, and they are playing a very important role. And I do not think that civil services is a better way of serving the nation than any other job in the world. It's only about what is your personality, what do you think you can do the best. For me, I found, sir, in civil services, especially in administration and policing both, you directly get to work on the ground, and you work with the people on the field itself. While in the consulting, you're working, you're strategizing, you're working on bigger projects. This kind of opportunity I found aligned more with the kind of person I am in the civil services. So that was the only reason I decided to switch, sir. Okay, and so what was the contribution of since we are trying to get into the roots of the things? So what was the contribution of your family members, right, for motivating you to pursue? Because you landed up with a very good job, resigning from there and taking such a big risk, right? So therefore, I'm sure there must be some kind of thoughts about settling down also. So, how did the family, view your decision of taking up civil services? Sir, I'm very thankful to my mother for the support she provided. I was in a very stable job. I had a very good career trajectory in front of me. And then I decided to do something which was at that point of time very uncertain for me. And I was not able, to be very honest, I was not able to take that decision whether I should resign, when should I resign, and how many attempts should I give. And at that point of time, my mother came in and she told me that I am 100% sure that you are going to clear this exam. Take it in writing from me. And she actually wrote it on a piece of paper and gave me that paper that you are clearing this exam. And I'm signing this paper. Something like secret. Yeah. So when she showed that kind of confidence in me, in that day, I decided to resign and prepare. So I think I'm very thankful, and I can never repay what she did for me. Though very thankful to her. Sir. So during the preparation, were there any weak moments where again your mother came into like support? Yes, sir, definitely, sir. It's a very long journey. Even for the first attempt itself, you need to prepare for 1 year, and 1 year the exam goes on. So it's a long journey. And I had very consciously decided to stay at home and prepare via online mediums. So there were times when I was like, I had only 10 months in my first attempt. So my syllabus was not getting finished. My answers were not coming right.
And I knew that there are so many people in this exam who have been preparing since years and they know so much more than me. My knowledge base is not that strong. So, and in that moment, my mother really supported me a lot. And she, I don't know how, but she always made statements like, I know you have studied the most in the country. I'm telling you, you don't know this. And such kind of, I know she doesn't know this, but these kind of statements really, really motivated me. And so all this kind of emotional support, she was very, very helpful. So you did you have any kind of online peer group, or you were totally preparing on your own, all on your own? Sir, I knew some friends who used to help me whenever I asked them that this is something I'm not able to do. Can you suggest me where can I go? So there were friends, but I personally preferred studying alone, and I think both ways are equally okay, studying in a peer group or alone. So whenever it came to studying, I studied on my own. But whenever I needed some guidance, I had friends. Sir. So please tell us about an average day in your UPSC preparation in the first attempt. Like at what time would you get up? How many hours did you have any targets that I have to study for this many number of hours, or like how did you schedule your day? So, sir, in my first attempt, I started with bare minimum knowledge of the exam, started from the scratch. And I did not have any particular number of hours in my mind. I just knew that I have very less time. So, whatever hours are there in my day, let me study. And I had decided to join a coaching also for online foundation course. So, morning 7:30 to 10-ish, I had my classes. Then I studied till 12 or 1:30. Then I slept for 1 hour. Then again I had my optional class from 2:30 till 5. Then I again studied in the night, sir. Then I slept at 1 or 2 a.m. So I preferred what I never thought it like I have to study 8 hours, 10 hours, 12 hours. I never had any number of hours in my mind. Whenever there is time, because I was already giving 5 hours to classes. So I had very less time after that. So whatever time I had, I studied. So like we'll also do simultaneous extractions, okay, some learnings for the students. So one thing which I noticed is that which is my thought process also. Whenever the day is very very hectic, if you are able to like sleep, right? Let's say for 1 hour or half an hour. So actually, when you wake up, right, you feel it's a new day, right? So therefore that gives you a fresh bout of energy, right? So that's a good thing. Like if you want to like study extra, so better to have a power nap or something like this, which will make you feel that okay, it is like a fresh day now, right? So that's one thing. And that's the day. Any plan that you had for like 3-month plan or like 1 year plan, something? Did you strategize? Did you sit down at some point of time, or and try to plan it for yourself, or you try to look at toppers talks or strategies कि अच्छा अगर मुझे एक साल में करना है तो मुझे किस तरीके से एक plan chalk out करना है? Sir, I did listen to some topper talks, not many, but like 4, 5, I think. And then I noted down their strategy, and based on them, based on what works for me, I planned out my own strategy. So I had some macro targets that till December I'll finish my syllabus once, and then I'll do a second revision in this time. Then I made my micro targets that monthly I'll try to finish this much, and optional should go simultaneously. So these kind of targets I try to make for myself. So. And we have among us as students, right, who really aspire to clear the exam in first attempt. And I know that you have had certain your college batchmates also who could not qualify in the first attempt, some who are still trying, some who qualified in their third attempts or second attempts. So interacting with them, what made the difference? Matlab, what are certain specific things which you would like to tell the aspirants, which became like a key differentiating factor in you being able to clear in first attempt? So the first thing is the mindset with which we go into the exam. So there are certain number of attempts given by UPSC, and when we start preparing, everyone, each and everyone will face obstacles. Their syllabus will not get finished, their answers will not be okay, prelims test score will be very low. So what happens is that we have this backup of another attempt, and we tell our minds कि चलो ठीक है इस बार नहीं हो रहा है, it's okay, I'll give my best in the next attempt, अगली बार ये सारी चीजें कर लेंगे and next attempt will be okay. So this mindset creates a very big problem, because the next attempt same thing happens. There is never going to be an attempt which is going to be the perfect master attempt where you have done everything. That will never happen.
So this mindset should change first of all. Whichever attempt you are in, irrespective of it, first, second, third, मतलब just जैसा सिक्स्थ अटेम्प्ट में फील होना चाहिए वैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में बस फील this होगा is your तो सही last है। attempt. हाँ। मतलब we are not here to keep giving attempts. We are here to just give the attempt and get through it. So one senior told me, in it to win it. If you're giving the exam, just clear it in that attempt itself. This mindset has to be there. मतलब it's very easy to say, but it's very difficult to maintain because बहुत obstacles आते हैं. एंड वो बहुत ही अच्छा एक रिलीफ पॉइंट होता है कि अगला अटेम्प्ट है, कर लेंगे बस। अरे इतना सारा सिलेबस बचा है, ये इस अटेम्प्ट में हो ही नहीं सकता, अब तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट जाएगा ही जाएगा। तो डू नॉट गिव योर सेल्फ दैट लीव नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट सीम्स। मतलब इट वॉज ओनली 10 months फॉर मी एंड आई न्यू कि पता नहीं सिलेबस खत्म। इट आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई टुक अप ethics after prelims in my first attempt. I had not even done ethics at that point of time, but I told myself ki no, even if I have not done ethics right now, I will give myself time, I will finish ethics and I will do it in this attempt only, no matter what. सो एथिक्स कब तक कंप्लीट किया था आपने? So I had done my classes before, but I had not self-study. I had not तो done. I प्रीलिम्स के started बाद after ही prelims. ओके। Yeah. तो इस मामले में आप जिद्दी थी या फिर आपकी मदर जिद्दी थी कि इसी अटेम्प्ट में होना है? क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स के साथ क्या होता है, जब बच्चा ज़्यादा टेंशन लेता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, इतनी क्या टेंशन ले रही है, सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो वॉज इट मतलब हाउ वॉज योर मदर विद रिस्पेक्ट टू दिस वन अटेम्प्ट इन इट और आउट ऑफ इट, समथिंग लाइक दिस? मतलब दिस वाज माय जिद कि मुझे आई कांट डिवोट so many years to this preparation. I'll run it like a sprint. I'll do it in this time only. And she was very supportive कि you can do this. मतलब I was fearful कि मतलब मैंने रख तो लिया है टारगेट, when she was like कि हो जाएगा। तो that way she was supportive. तो एक ही पॉइंट हुआ है अभी आपका, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया। तो फर्स्ट थिंग इज कि माइंडसेट शुड बी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, राइट? दैट शुड बी द एटीट्यूड। अनदर थिंग इज सर, जो अटेम्प्ट्स बढ़ा देता है इज वी डाइग्रेस हियर एंड देयर अ लॉट। बहुत ही सिंपल एग्जाम बना सकते हैं, वी ओनली स्टिक टू सिलेबस एंड PYQ। बट ये सिंपल चीज विच टाइम एंड अगेन मैनी टॉपर्स रिपीट, आई हैव सीन पीपल एक्चुअली नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। यू मतलब आई गिव, दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट, बट ईच एंड एवरी अटेम्प्ट आई स्टार्टेड विद द सिलेबस ओनली. No matter how many times I've memorized it, I'll go through the syllabus, I'll go through the PYQs again and again, because you have very limited amount of time. It's important to know what to study, but it's even more important to know what not to study. So syllabus and PYQ really keeps you on track कि आप इधर उधर ना जाएं and you stick to what is being asked. तो उससे सर बहुत optimization होता है कि you do not roam around here and there. Third thing which helped me was, in my personal case, was that I stayed at home. So I had very minimal resources with me. I had not come here, so I did not know what all resources exist in the market, what all exists. I just saw some online toppers book list and I found this is common, so let me just do this. I read it, I revised it multiple times. I saw toppers copies and I kept it very simple. I think that was something that helped me, and I had faith in my strategy that whatever I'm doing, it's okay. I did not do 4 books, 5 books for any subject. I took 1 or 2 books, 1 or 2 extra sources, and that's it. So minimum time actually helped me to clear it in the very first attempt because I optimized it that way. So that was another thing. So the second thing that I would like to extract for the students is कि not reading multiple sources but reading one source but in a perfect manner, time and again, so that you're able to understand each and every line and the intent behind that line. And second, getting direction from the PYQs. Next which I'm going to ask you is कि जब हम PYQ देखते हैं तो हमें किस एटीट्यूड से देखना चाहिए? काफ़ी बार स्टूडेंट्स उसको कॉपी पेस्ट वाले एटीट्यूड से देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पहले आ चुका है तो रिपीट हो जाएगा, या फिर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द यूपीएससी एंड मतलब वो पीवाईक्यू पढ़ के हमारे पढ़ने का नज़रिया कैसे बदलना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक तो जो पहली चीज़ होती है कि व्हेन वी रीड PYQs तो क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, क्योंकि अगर सिलेबस की लाइन थोड़ी सी वास्ट लग रही है किसी भी टॉपिक में, तो व्हेन यू सी PYQs यू रियलाइज कि दिस इज द ब्रॉड डायमेंशन अप टू विच UPSC इज गोइंग। तो एक ये जैसे फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इज देयर, सो इफ यू से सी द PYQs यू विल रियलाइज कि RPA से कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर रेपिटेटिव ऑल्सो एट टाइम्स, तो you can limit your syllabus in certain manner from PYQs. That is one thing. Second thing is you see ki how in one single, if you read same PYQ multiple times, you will realize कि एक question में there are multiple parts. And जब हम exam में लिख रहे होते हैं, what happens is कि when we are doing it very fast, तो we skip those parts. But if we see PYQs, we are able to answer all the parts. तो वो एक important चीज़ होती है. Another thing is to see the keywords, elaborate, explain, why,
क्रिटिकली इवैल्यूएट, डिस्कस, वो भी थोड़ा सर समझ आने लगता है कि क्या लिखा हुआ है. एंड बाकी सर इफ़ यू रीड PYQs अगेन एंड अगेन समहाउ ब्रेन ही वैसे काम करने लगता है कि when you go through your syllabus, when you go through the newspaper, you start extracting the relevant and important things. मैं थोड़ा सा गेस मारूंगा, ठीक है, आप बताना कि ठीक है मारा नहीं मारा. जैसे आयुषी सेड कि डिफरेंट पार्ट्स, तो एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स. तो इफ यू लुक एट दी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स रिलेटेड PYQs, at times UPSC asks about personalities, that is, tell us about Raja Ram Mohan Roy, Henry Vivendi Rezio. After some years, UPSC asked about organizations, tell us about Brahmo Samaj and Young Bengal, right? So, and at times UPSC has asked that about the issues, like women related issues were the major issues. So मैं पार्ट से यहाँ पे सोच पा रहा हूँ कि अच्छा, इस पूरे टॉपिक में जो मुझे समझ में आया कि पर्सनैलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जो संस्थाएं बनाई, दी ऑर्गेनाइजेशंस विच दे सेटअप आर इम्पॉर्टेंट, एंड द इश्यूज विच दे पिक्ड अप, दैट बिकम्स काइंड ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट. तो मतलब, और इसी को इन्होंने तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया, प्लीज टेल अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स. तो व्हेन यू टॉक अबाउट कैरेक्टर, यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओनली, कि व्हाट वर द इश्यूज, व्हाट वर द मेथड्स, विच पर्सनैलिटीज, विच ऑर्गेनाइजेशंस. तो मतलब यही पार्ट्स हैं, मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं. I was referring to something else, sir, but this is also a very important way of analyzing PYQs कि पुराने PYQs से we get to know कि आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या आंसर करना है. What UPSC wants us to answer. Sometimes that is also something we get to know. जैसे if they're asking about social religious reforms and they have asked about issues, personalities, so those are the kind of things they want to see in the answer. And the parts that I was talking about, sir, कि the question they have asked उसके multiple parts होते हैं. तो कई बार we miss those multiple parts. So second aspect is PYQ. Third, how are you able to clear in first attempt? सर वही एक तो रेलेवेंट जो प्री और मेंस के बीच में टाइम होता है, उस टाइम को आई यूटिलाइज्ड वेरी वेल इन ऑल ऑफ माय अटेम्प्ट्स. आई गेव इक्वल अटेंशन टू ऑल ऑफ द पेपर्स. ऐसा क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ माय वीकनेस. तो आई गेव अटेंशन टू ऑल द 7 पेपर्स. ऑल GS ऑप्शनल, ऐसा कभी नहीं करा मैंने कि मैं ऑप्शनल में ही पूरा टाइम दे रही हूँ या GS में ही पूरा टाइम दे रही हूँ. तो my mark sheet also in my first attempt was like that only. I scored almost average, above average in all the papers, so which got me through till 188. So that is one thing which worked for me, sir. But अगर हम PYQ, if we'll analyze PYQ, and as a student I would feel that there are certain subjects from which less number of questions come. And then, for example, if I take the example of post-independence India, right? So in the recent times, less number of questions come. When I go through the sources, so therefore रामचंद्र गुहा की बहुत मोटी किताब है, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा फिक्स में हूँ to how to resolve that problem. Sir, what I meant to say was not equal attention to all the subjects but all the papers. So it should not be like कि what some people do कि optional में ही पूरा टाइम दे रहे हैं, GS को इग्नोर कर दिया, या फिर सिर्फ GS4 ethics ही करे जा रहे हैं, बाकी सब इग्नोर कर दिया. That is something I did not do. GS 1, 2, 3, 4 all got equal time. Optional also got equal time. And GS4 को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा था मुझे because that was the first time I was doing it. तो that's it, sir. That is one thing. तो विद इन अ GS जब ऐसा समस्या आता था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें फिर आपने कैसे बैलेंस किया अपने टाइम को? बिकॉज अ स्टूडेंट वुड नॉट वांट टू स्टडी अ वेरी बल्की सोर्स लाइक रामचंद्र गुहा's इंडिया आफ्टर गांधी. तो फिर ऐसे वाले इश्यूज में क्या किया? क्योंकि काफ़ी बार UPSC ऐसे करता है कि पैटर्न्स बना देता है कि सिंस द लास्ट 3 years 4 years वेरी लेस क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिर वो पैटर्न एकदम से चेंज भी कर देता है. तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? So regarding this, we have to remain very practical. When I analyze syllabus and PYQs, for each syllabus point, I also used to write approximately कितने marks का पूछ रहे हैं उससे. So for example, in GS3 economy, let's say is coming for 80 marks, 100 marks, and some other subject is coming for very less marks. So my time devotion is also in the proportion of marks only. So if let's say for post independence आ ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, या आ भी रहे हैं तो 10 नंबर का आ रहा है, एंड सोसाइटी का 100 नंबर का पेपर में आ रहा है, तो what people do is they are studying post independence and ignoring society. So that is something I would not do. I will give very good attention to society. I had my optional sociology also, and post independence ko I'll maybe do PYQs or some short notes, something in the available online, and that's it. Not too much into it because बहुत limited time में we have to optimize. तो अच्छा, one important part of clearing in the first attempt is like being exam ready. तो विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज, तो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट किया था कभी या फिर नहीं किया था?
Yes, sir. I did some test series and उसका भी सर with respect to prelims टेस्ट सीरीज तो सर मोस्टली लोग कर ही लेते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो विथ रिस्पेक्ट टू प्रिलिम्स टेस्ट प्रिलिम्स आई विल से टू थिंग्स स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पीपल इग्नोर स्टैटिक इन द नेम ऑफ करंट बट स्टैटिक इज़ वन पोर्शन वेर यू कैन बी वेरी श्योर दैट यू विल गेट अ करेक्ट आंसर तो आई फोकस्ड वेरी वेल ऑन माई स्टैटिक current I prepared from newspaper and then with respect to test I focused on analysis a lot so once I give my test I used to attempt in 3-4 rounds so once I give my test I'll just see which are the subjects where I'm making the most number of mistakes so that is one area where I need to study more. Second, I'll see in which round I'm making more number of mistakes. So in that round, I'll remain more careful. So for example, I noticed that in my first round, I had very good accuracy. But in my second round, I had a lower accuracy. In my third round, my accuracy again improved. What do you mean by rounds hai? So I used to attempt paper. First round, I'll go through all the questions. Second round, again, I'll go through all the questions. So in multiple rounds, I used to attempt the paper. So I analyzed my rounds also. Ki where am I making the most number of mistakes? So while in the exam, when I'm doing the question, I'll remain extra careful. And I also used to analyze the subjects. So for example, history, I was very confident about my history that I've learned, and there are direct questions. I should be able to do it. But when I did the tests, I actually found out that in history, I'm making the most number of mistakes. So this kind of insight we can gain from tests. And then I understood that there is no problem in my knowledge. But when I read a question, I'm very careless sometimes. I miss this kind of thing. So this way test can be very helpful. So. So basically being more aware about your own pitfalls and like trying to fill them up. तो आपने टेस्ट सीरीज कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट द टेस्ट सीरीज शुड वी स्टार्ट इट लाइक राइट अवे या फिर एक राउंड ऑफ प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दैट सर टेस्ट पर से जो प्रॉपर 2 hours का टेस्ट है दैट आई स्टार्टेड इन फेब्रवरी ओनली आई थिंक एंड प्रॉपर टेस्ट एकदम अच्छे से देने वाला आई स्टार्टेड 3 months बिफोर प्रीलिम्स उसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज वंस वी आर डूइंग आवर सिलेबस जस्ट फाइंड आउट 10-20 क्वेश्चंस पीवाई क्यूज तो यू कीप डूइंग इट पीवाई क्यूज आर द होली ग्रेल जस्ट कीप डूइंग देम ऑलवेज apart from that in tests anywhere you find 10-20 questions of that particular subject we can keep doing those questions so that way I think it can help us to get into the habit of doing questions. और मेंस का टेस्ट सीरीज आपने यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डेली आंसर राइटिंग कुछ किया था या फिर यू मतलब मेंस का कैसे किया आफ्टर प्रीलिम्स या बिफोर प्रीलिम्स Sir, in my first attempt, I started some answer writing before prelims, but those were very horrible answers. So I started properly writing after prelims only. But after prelims, I made sure I am writing every day for 3-4 hours. That after that, I did very religiously, but before that, I was not able to do it because there was no time. एंड ऑल्दो यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो सीजैट में आपको शायद से प्रॉब्लम नहीं रहा होगा बट व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीजैट स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड दैट इज लाइक at times it becomes like a phobia so like how to approach CSAT what would be your like Sir, I don't think I'm the very right person to comment on this because I personally never found a lot of difficulty in CSAT. But what I did was PYQs, CSAT. Ki just pick up the paper last 5 years, solve it in 2 hours. And if you solve it, you will see कि certain patterns of questions हैं उसमें. तो मैथ्स में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ही बार बार आ रही हैं तो जस्ट गूगल एंड सी हाउ टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड another thing which I find in CSAT is do not get emotional with CSAT. What people do, especially who are from maths background, they try to solve all the maths questions and that is a trap. Focus equally on the passage and the maths passage sometimes are very easy actually. So focus on those also. That is something that I followed. That is what I can suggest right now. Acha, one last question. After that, we'll give a chance to the audience to ask some. So prepare some questions in your mind, okay? I will pass on the mic to you. Regarding the current affairs, you said that you prepared from newspapers. So like two options are there. Three options are there with the student nowadays. One is reading the newspaper and making notes from that. And that is your one go-to source. Second is that coaching institutes also provide their monthly magazines or compilations of yearly. So therefore like how to manage this? Student बड़ा confused रहता है क्या मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लूँ और नोट्स के लिए कोचिंग मटेरियल पे रिलाई कर लूँ या फिर न्यूज़पेपर से भी नोट्स बनाऊँ और कोचिंग वाले नोट्स भी बनाऊँ और उनको मैं मर्ज करूँ तो वो आपने कैसे मतलब टैकल किया
सर न्यूज़पेपर्स में स्पेशली जब बिगनर होते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता एंड इट टेक्स 3-4 आवर्स. तो इनिशियली फॉर 1 month व्हाट आई डिड वाज आई रेड न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन कोचिंग वेबसाइट्स पे दे गिव एक्सप्लेनेशंस आल्सो. तो आई यूज्ड टू रीड दोज एक्सप्लेनेशंस बट जस्ट फॉर 1 month, इनिशियल 1 month. उससे माई बैकग्राउंड गॉट क्लियर्ड कि वॉट इज हैपनिंग इन द न्यूज़ एंड सर्टन बेसिक टर्म्स ऑल्सो गॉट क्लियर्ड. So after that, I only read the newspaper. Now coming over to the note making and everything. In my first attempt, I did make notes, online notes I made from the newspaper. But end में जाके वो इतने ज़्यादा bulky हो गए थे कि I could not use them before prelims. I used them in a certain amount in my mains, but I could not use them in prelims. So I read those compilations for prelims. Finally, वो PT 365 I read it. But one thing I would say that nothing can replace newspaper. No compilation, no monthly, nothing can replace newspaper. Even if you're not able to make notes out of it, just make sure you read it. क्योंकि बार बार if we read newspaper, something stays in our mind. Subconsciously वो रह ही जाता है दिमाग में. तो and you get into that habit of reading. And if you're going through syllabus and PYQs, you will automatically spot कि ये बहुत important areas हैं जो पेपर में आ रहे हैं. So we should make उसके कुछ important notes बना सकते हैं. In my second and third attempt, I did not read any compilation, any monthly, nothing. Monthly तो मैंने खैर कभी नहीं पढ़ी. Compilation भी नहीं पढ़ा मैंने second, third में. It was only newspaper which helped me to sail through. And for my mains, mains and interview both, newspaper was very important. तो क्योंकि मैंने PYQs बार बार पढ़ रखे थे, तो जो भी टॉपिक्स बहुत बार पूछे जाते हैं, जो भी रिपीट होते हैं, GS2 एंड GS3 स्पेशली, कोई इंटरनल सिक्योरिटी पे चीज़ आ गई, कोई डिजास्टर्स पे बात आ गई, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आता है न्यूज़पेपर में, रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, इन सब पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं. तो वेरेवर आई फाउंड कि PYQs और सिलेबस से लिंक्ड बहुत अच्छा आर्टिकल है या कुछ बहुत अच्छी केस स्टडी है, तो आई मेड अ नोट आउट ऑफ इट ऑनलाइन. तो ये दिस इज समथिंग आई डिड इन माई सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट एंड आई यूज्ड न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स अ लॉट इन माई पेपर. एंड कई बार नोट्स नहीं भी होते थे बट वो एग्जाम्पल्स याद रह जाते हैं. कि कोई डिजास्टर आ गया है तो आपको याद रह ही जाएगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर, या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ GS2 रिलेटेड, कुछ पार्लियामेंट की बातें चल रही हैं, आपको याद रह ही जाएंगी. तो इट हेल्प्स दैट वे. तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो ट्राई करते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर, दे हैव दिस इशू ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स इट वाज दैट यू नीडेड 3 to 4 hours, and gradually was there any decrease in the number of hours required to read a newspaper per day? Sir, it was for quite some time. Initially, at least 3 months, I think I took 3 hours. After that, it got reduced to 2 hours. And it did not get reduced from 2 hours after that for a very long time. But in those 2 hours, you were able to read plus compile the notes, both. I think so, yes. But then I stopped making notes after a while because I was not able to use them. So it took 1.5 hours then finally. So now we pass on the baton to the students, right? So I know there would be a lot of doubts. Anyone? Yeah. Congratulations, ma'am, first of all. Ma'am, my question is that for division, लाइक कैसे मैं रिवीजन करूँ? बिकॉज अगर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू किया और मैंने 1 महीने का टारगेट बनाया कि अगर मैं डेली 20 पेज पढ़ रहा हूँ तो 1 महीने मेरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा. बट द थिंग इज़ दैट मैम कि आफ्टर 1 मंथ जब मैं टेस्ट लगाता हूँ तो मार्क्स उस तरीके से नहीं आते. तो मैं ये कन्फ्यूज हूँ कि रिवीजन मुझे ऐसे करना चाहिए कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो शॉर्ट नोट साथ में बनाते चलूँ और कुछ दिनों बाद मैं उसे रिवाइज करूँ, या फिर 1 महीने बाद फिर से उस बुक को मैं किस तरह रिवाइज करूँ? इसलिए इसमें बहुत दिक्कत आ रहा है, जिस कारण से रिवीजन में दिक्कत हो रही है. तो किस तरीके से रिवीजन को करना ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा? और दूसरा मैम एक और क्वेश्चन, मेंस में आंसर राइटिंग से काफ़ी डर लगता है. सो जैसे अभी मैं आंसर राइटिंग शुरू भी करना चाहता हूँ तो क्या होता है कि मैं आंसर राइटिंग में अपने नोट्स को खोल लेता हूँ कि नोट्स से देख के मैं फिर पॉइंट को नोट डाउन करने लगता हूँ. तो इसको कैसे कोप अप करूँ सो डैट ये दोनों प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो सके? So first was revision. This is a very normal problem with everyone. एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ के you तो are attempting test, मुझे तो चैप्टर का नाम भी याद नहीं हुआ था. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक बार बुक पढ़ के हम कोई टेस्ट लिख लें. तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है खुद से. वॉट आई यूज टू डू, आई कैन टेल यू. जैसे लक्ष्मीकांत ही ले लेते हैं. फर्स्ट टाइम आई यूज टू रीड इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल आराम से समझने के पर्पज से, अच्छे से आराम से पढ़ेंगे. एक बार पढ़ लिया, मे बी इट विल टेक 1 month, लेट्स से, ठीक है. देन आई डू अ सेकेंड रीडिंग. इट विल टेक ओनली 15 days. अपने आप ड्रास्टिकली टाइम रिड्यूस हो जाता है सेकेंड रीडिंग में. सेकेंड रीडिंग करी, देन आई टेक अ पेंसिल. आई यूज टू अंडरलाइन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है विद अ पेंसिल. देन आई गो फॉर अ थर्ड रीडिंग. दिस टाइम आई यूज अ पेन. अब वो 10 दिन में होगी थर्ड रीडिंग, 10 दिन में, 7 दिन में, 1 हफ्ते में भी हो जाएगी. देन आई डू अ फोर्थ रीडिंग एंड आई यूज अ मार्कर. कम से कम यू नीड 5-6 readings at least of one subject to finally be able to remember an answer.
मैम तो क्या उसे एक अलग कॉपी में या फिर नोट डाउन करते रहना चाहिए इट क्या? इज़ योर कॉल. मतलब ऐसा होता है कि कोई एक वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी नहीं होती कि यही सही है. मैंने जो करा था कि पेंसिल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरा नोट मेकिंग वॉज नेवर माई स्ट्रेंथ. ये मुझे बहुत पहले ही रियलाइज हो गया था प्रेपरेशन में कि नोट्स बनाना मेरी स्ट्रेंथ तो नहीं है. तो वॉट आई डिड वॉज कि पहले पेंसिल से अंडरलाइन करा, फिर पेन से अंडरलाइन करा, फिर उसी को मार्कर से अंडरलाइन करा, फिर दूसरे मार्कर से अंडरलाइन करा. यू शुड सी द स्टेट ऑफ माई बुक्स राइट ना, वो फट गई हैं पूरी. तो उसी को ही बार बार एंड में वो इतना छोटा अपने आप ही बुक उतनी ही है, बट उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो बहुत कम हो गया था. तो एंड में आई कुड रिवाइज इट इन 3-4 आवर्स ऑल्सो, कि बस ये हाईलाइटेड पोर्शन जो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं हो रहा है, बस वो करके दैट वॉज डन. अगर आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा हेल्प होती है, यू आर दैट पर्सन, आपने अभी तक जैसे भी पढ़ाई की है कॉलेज तक नोट्स बना कर की है, तो यू डू दैट वे. इट इज़ योर पर्सनल कॉल. मतलब अ, यही माइंडसेट है कि हम ऐसा समझते हैं कि यूपीएससी कुछ अलग है, कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी चाहिए दुनिया की. ऐसा नहीं है. जैसा भी आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स को, कॉलेज में भी आपने पढ़ा ही होगा, तो जैसे भी आप वहाँ पे पढ़ते थे, जस्ट कीप फॉलोइंग द सेम थिंग. नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, इट्स योर कॉल. और जो मेंस आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग तो देखो, मैं कहीं और भी बोल रही थी कि मैंने जब अपना पहला आंसर निकाल के देखा था, तो मैंने 150 वर्ड्स का आंसर 4 पेज पे 400 वर्ड्स का लिखा था. तो पहला आंसर दुनिया में सब बहुत खराब लिखते हैं. एवरीवन राइट्स अ वेरी बैड आंसर इन देयर फर्स्ट टाइम. तो द ओनली वे टू कॉन्कर योर फियर ऑफ आंसर राइटिंग इज टू डू इट, एंड इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम जब आपका फाइनली एक अच्छा आंसर निकलेगा. बट वो लॉन्ग टाइम का जो प्रोसेस है ना, वो देना ही पड़ता है. देर इज नो वे अराउंड इट. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यू स्टडी एंड सडनली वन डे यू नो एवरीथिंग, यू राइट एन आंसर एंड एकदम परफेक्ट आपने 10 मार्कर 15 मार्कर लिख दिया. दिस विल नेवर हैपन. एंड डू नॉट रिलाई ऑन कि 100% सिलेबस खत्म होगा तभी मैं लिखूंगा. इफ यू आर डन विथ लाइक 60-70% ऑफ द सिलेबस ऑल्सो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग. बहुत खराब आंसर आएंगे. राइट, एटलीस्ट राइट फॉर 1 month एंड देन सी द डिफरेंस विद इन योर सेल्फ. आपको खुद ही दिखेगा. आंसर राइटिंग इज अ स्किल एंड स्किल नीड्स प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं है उसमें. तो द ओनली वे टू ओवरकम इट इज टू जस्ट डू इट. ओके थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैम मुझे ये पूछना था कि मैम मैं भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, ग्रेजुएटेड इन बीटेक ऑन देयर इटसेल्फ. सो मैम यूपीएससी और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से यहाँ पर आने में थोड़ा डिफरेंस है मैम. लाइक वहाँ पे हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. मैंटेलिटी चेंज हो जाती है. यहाँ पे हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमने कभी टच भी नहीं किए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जो हमने 9, 6, 7, 8 के आसपास पढ़े थे. तो मैम उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे वो जो चेंजेस आते हैं इंजीनियरिंग से डायरेक्टली यहाँ यूपीएससी में, उसे कैसे हम मतलब टैकल करें, प्लीज़ वो बताइए मैम. और मैम रिगार्डिंग सोशलॉजी आई विल आस्क लेटर. आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब इंजीनियरिंग में हम उस तरीके से नहीं अप्रोच करते हैं चीज़ों को, बट ये वही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. वंस यू स्टार्ट रीडिंग योर बुक्स, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे वैसा होने लगता है कि हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट करने लगता है. एंड जीएस में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए भी नहीं, एकदम प्रॉपर ह्यूमैनिटीज़ वाली, वो थोड़ा ऑप्शनल में चाहिए होती है. तो जीएस का तो वी कैन वेरी इजीली मैनेज. तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि इंजीनियरिंग से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करना इट्स अ लिटिल टफ इन द बिगनिंग, बट वंस यू गिव टाइम इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेटलिंग इन. क्योंकि अच्छा टाइम होता है हमारे पास, 1 साल है एग्जाम से पहले, तो 1 साल में इतनी फेमिलियरिटी बिल्ड हो जाएगी सब्जेक्ट से दैट यू शुड बी एबल टू मेक दैट ट्रांजिशन. मैम मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया था और मेरा जीएस हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली सीसैट रुक गया है बिकॉज ऑफ पैसेज. मैथ्स तो मेरा हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स हो जाते हैं हमसे. तो मैम उसको कैसे आगे फर्दर अप्रोच करें रिगार्डिंग सीसैट, क्योंकि मैंने सीसैट उतने अच्छे से नहीं किया था. मैं सोचा था कि मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स हो भी गया था, बट पैसेज में थोड़ा सा ट्रिकी था इस बार का. तो सीसैट का देखो, वही मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अलग से सीसैट का कुछ नहीं करा था. बट हर चीज़ के लिए आई वुड से पीवाईक्यूज़, बहुत सारे साल के पीवाईक्यूज़ उठा के जस्ट गो थ्रू द पैसेजेस. मैंने जब पैसेज की प्रैक्टिस की थी तो ऐसी ही की थी कि आई सॉ द पैसेज, आई टिक्ड एन आंसर एंड देन आई मैच्ड इट विद द ऑफिशियल आंसर की. तो जब बहुत सारे पैसेजेस के लिए ये किया तो यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू पैसेजेस, किस तरीके के ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और करेक्ट ऑप्शन में कितना डिफरेंस है. तो एक बार ये ट्राई कर सकते हो, दिस माइट हेल्प. और मैम सोशोलॉजी में लाइक मैम एक बार हमारा पूरा जीएस हो जाता है, पूरा हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैम उसके बाद हम वैल्यू एडिशंस कैसे करेंगे. लाइक पेपर 2 में हमें थोड़े करंट अफेयर्स के एक्सपेक्ट को ऐड करना पड़ता है. सोशोलॉजी हाँ. तो उसमें आप बताएं मैम. और मैम पेपर 1 में किस किस सब चैप्टर्स को ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दें. लाइक जो चैप्टर हमारा 4th है, थिंकर्स जो आते हैं जिसमें कार्ल मार्क्स, खाइम, ये लोग आ जाते हैं, तो इसको कैसे मैम अपने वैल्यूडेशन कैसे करें एक बार ख़त्म हो जाने के बाद सारा सिलेबस.
देखो सोशियोलॉजी का आई वुड से कि बहुत ज़्यादा हम वैल्यू एडिशन के पीछे भागते हैं स्पेशली इन पेपर 2. आई ऑल्सो मेड दिस मिस्टेक बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. मतलब देखो सोशियोलॉजी में गड़बड़ ये होती है पेपर 2 में कि वी थिंक कि ये टॉपिक के तो थिंकर्स ही नहीं है हमारे पास, या फिर इस टॉपिक के हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, करंट एग्जाम्पल्स नहीं है. बट इफ़ यू गो थ्रू टॉपर्स कॉपीज एनालाइज करना एक बार बहुत अच्छे से, you'll realize कि बहुत सिंपल आंसर्स आर गेटिंग मच मोर रिवॉर्डेड देन आंसर्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत थिंकर्स हैं और ये सब है. दिस इज नॉट गेटिंग रिवॉर्डेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर जो सोशियोलॉजी के पेपर 2 में डिमांड क्वेश्चन की है, इफ यू आर एबल टू एड्रेस दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी वैल्यू एडिशन, एनी करंट अफेयर्स. सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड दीज थिंग्स, अगर सोशियोलॉजी का सिलेबस खत्म हो गया एक बार, सो आई वुड सजेस्ट यू डू PYQs मोर एंड यूटिलाइज टॉपर्स कॉपीज. वहाँ से जो वैल्यू एडिशन होना होगा वो हो जाएगा. अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है सिलेबस की एंड देर इज नथिंग मोर टू ऐड, फोकस ऑन राइटिंग अ लॉट मोर. फोकस ऑन PYQs, focus on writing tests, writing answers, matching with toppers copies, and then seeing how can you properly write a sociology answer instead of कि और क्या कंटेंट डालूं और क्या वैल्यू एडिशन करूं. उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आंसर राइटिंग करती है. तो आई वुड सजेस्ट यू डू दैट. उस और पर मैम टेस्ट एक बार ख़त्म हो जाए हमारा सिलेबस उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं क्या? टेस्ट, हाँ हाँ डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट. यस, मतलब इट्स ऐसा लीनियर प्रोसेस नहीं है कि सिलेबस खत्म हुआ तो टेस्ट होगा. सिलेबस थोड़ा खत्म हुआ, फिर टेस्ट दिया, फिर वहाँ से गैप्स पता चले, वापस सिलेबस थोड़ा सा और रिवाइज किया, फिर और टेस्ट दिए, फिर गैप्स पता चले और सिलेबस. सो इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस, नॉट अ लीनियर प्रोसेस. और मैम एक प्रीलिम से रिलेटेड, मैम जब प्रीलिम्स आता है तो हम ऐसा सोचते हैं कुछ सब्जेक्ट्स हमारे छूट जा रहे हैं. लाइक हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज कुछ ईयर से घटा है, 2 क्वेश्चन आने लगे, 1 क्वेश्चन आने लगे, 3 क्वेश्चन आने लगे, तो हम सोचते हैं कि उसको हम लास्ट के लिए रखेंगे. बट मैम लास्ट में वो टाइम आ नहीं पाता है. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे आर्ट एंड कल्चर स्किप करना पड़ गया, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट जो लाइक सोशल रिफॉर्म में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ गई, और लास्ट में जो पर्सनैलिटीज़ के रहते हैं वो सब छोड़ने पड़ गए. तो मैम ऐसे में क्या किया जाए, लाइक जो लास्ट मोमेंट पे. और मैम स्कोर्स भी थोड़े प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देने से थोड़े कम आते हैं, लाइक 50-60 की रेंज में आते हैं, तो वो बहुत थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो जाता है एट द एंड. तो मैम उसको कैसे टैकल करें? तो दिस इज रिगार्डिंग योर प्लानिंग. तो जो 3 महीने हैं प्रीलिम्स के, उसमें यू हैव टू प्लान आउट वेरी वेल कि जो स्टैटिक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, कि अगर आपने पढ़ा है, इफ़ यू हैव रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स एंड यू शुड बी एबल टू डू द क्वेश्चन. तो उनको आप इंश्योर करें कि वो आपके टाइम में ख़त्म हो जाए, है ना. तो प्रायोरिटाइज इन सच अ मैनर कि जो सबसे ईजी चीज़ें हैं जो करेक्ट हो ही सकती हैं वहाँ पे, यू डू दोज फर्स्ट सबसे अच्छे से. दूसरा, इवन एंड में वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कुछ रह भी जाता है एग्जाम से पहले, तब भी यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स इफ यू हैव द राइट माइंडसेट, बिकॉज कभी ना कभी तो आपने वो पढ़ा ही है, ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं पढ़ा. तो जस्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स पेपर, इफ यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 100 क्वेश्चन सीधे किताबों से उठ के आ रहे हैं. बहुत सारे क्वेश्चन रिक्वायर जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन दैट मोमेंट, इन दोज 2 आवर्स. तो अगर गलती से कुछ छूट भी जाए, तो ये माइंडसेट के साथ जाना कि मैंने नहीं पढ़ा तो किसी ने भी. आई यूज टू टेल माई सेल्फ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, इंडिया में किसी को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है. आई एक्चुअली यूज टू टेल माई सेल्फ इन द एग्जाम, जबकि ये कोई सच बात नहीं है, आ ही रहा होगा किसी ना किसी को. बट वो बोलने से ना मेरे दिमाग से एक फियर हट जाता था कि मैंने नहीं पढ़ाई की है. नाउ आई विल थिंक अफ्रेश, उस मोमेंट पे उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी वो क्वेश्चन सही हो सकता है अगर वो पढ़ा नहीं भी हुआ है तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज़ यू मैंशनड अबाउट टेस्ट सीरीज में अगर लो स्कोर आ रहा है तो आई वुड से कि उससे यू लर्न कि एग्जैक्टली लो स्कोर कहाँ आ रहा है, दैट इज वेयर योर एनालिसिस कम्स इन. मेरा भी लो स्कोर आता था, सबका लो स्कोर आता है स्टार्टिंग में. हिस्ट्री में मैम गलत हो जाते थे बहुत सारे, जो पढ़ के भी जाते थे. एग्जैक्टली, सो दैट इज योर लर्निंग देयर कि मेरे हिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए. क्यों हो रहे हैं? क्या मुझे याद नहीं है, या मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ, या क्वेश्चन पढ़ सही रहा हूँ लेकिन वहाँ कुछ और सोच लिया. सो एनालाइज इट एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, मेक श्योर यू डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स. सो ऐसा बोलते हैं ना, द मोर वी स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस वी ब्लीड इन द वॉर. तो सारी स्वेटिंग अपनी टेस्ट सीरीज में ही कर लो. मेक ऑल द मिस्टेक इन द टेस्ट सीरीज, तो एग्जाम में यू आर वेल प्रिपेयर्ड. इसमें वैसे मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा. तो ये एक्चुअली मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने किया था. तो वाइल एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर्स, मैंने एक चीज़ ये देखी कि यार माय एक्सपेक्टेशन वाज कि वंस आई रीड अ पर्टिकुलर बुक, लेट्स से लक्ष्मीकांत और डी बसु और एनीथिंग, देन आई शुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मैं क्या करता था कि देन आई स्टॉप लुकिंग एट द आंसर्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आई यूज टू फर्स्ट, आई विल गो टू माई सोर्स, आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक कि ये यहाँ से मैंने पढ़ा था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाऊँ, तो मैंने क्या गलत तरीके से पढ़ा,
क्या मैंने मतलब क्या किया मैंने ऐसा। और काफ़ी बार मुझे ये पता चलता था कि क्वेश्चन उस वाले पार्ट से पूछा गया जो मैंने हाईलाइट नहीं किया था। और हम तो मुझे पता चला कि अच्छा हाईलाइट भी करने का एक तरीका है कि क्या चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। मतलब ये तो खैर मेरे साथ यूपीएससी में हुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन वहाँ से पूछा जो पैराग्राफ मैंने हाईलाइट नहीं किया था। तो फिर जब रिवाइज करते हैं तो सिर्फ वही वाला पार्ट रिवाइज करते हैं जो हाईलाइटेड होता है। तो हर रिवीजन में वो वाला पार्ट कभी रिवाइज ही नहीं हुआ उस तरीके से। तो इस तरीके से अपने सोर्स को किस ढंग से पढ़ना है उसमें भी मेरे को इम्प्रूवमेंट आया बाय एनालाइजिंग दी कि मेरे कौन से वाले क्वेश्चन प्रीलिम्स में या फिर मेंस में मेरे नहीं हो रहे, मेरे गलत हो रहे। ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 अपने सोर्स पे जाओ, उससे अपने सोर्स को कैसे ज़्यादा बेहतर पढ़ना है, क्या चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है पर हम सोचते थे कि मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो आइडेंटिफाई करके अपने सोर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर, वो एक चीज़ मतलब मैं कर पाया। दूसरी चीज़ जो मैं आंसर करना चाहूँगा मतलब ऐड करना चाहूँगा वो रिगार्डिंग दिस थिंग जो आपने बताया, तो एग्जैक्टली मेरी भी स्ट्रैटेजी होती थी। मतलब शुरुआत में नहीं होती थी, बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो पूरी की पूरी किताब को ही अंडरलाइन कर दिया। क्योंकि जब हम पहली बार कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हमको सब चीज़ डिफ़िकल्ट लगता है। जो चीज़ हमको डिफ़िकल्ट लगता है हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, पूरी की पूरी किताब ही अंडरलाइंड होती है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि फर्स्ट रीडिंग में मैं कुछ भी पेन भी नहीं उठाऊँगा, पेंसिल भी नहीं उठाऊँगा, कुछ नहीं उठाऊँगा। ठीक है। और उस रीडिंग को मैं थोड़ा सा फास्ट करता था, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि हाउ टू रीड फास्ट। ठीक है। तो मैं एक किताब मंगवाया, उस किताब का नाम था बेस्ट सेलर है, हाउ टू रीड फास्ट। मैंने वो वाली किताब पढ़ी। तो उसने एक स्ट्रैटेजी ये बताई हुई थी कि इन द फर्स्ट रीडिंग यू डू नॉट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जस्ट योर फोकस शुड बी क्विकली कंप्लीटेड। इन द सेकंड रीडिंग यू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो बहुत टफ होता है करना, बट जब मैंने किया तो मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था एक्चुअली। मतलब सेकंड रीडिंग में हम सब क्वेश्चंस माइंड में एक्चुअली फर्स्ट रीडिंग में भी कुछ कुछ गैदर कर रहे होते हैं। और ये चीज़ जब मैं न्यूज़पेपर में लगाता था तो उससे मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। मतलब पहली बार मैं आर्टिकल पढ़ूंगा बस ऐसे ही, जितना फास्ट हो सकता है पर पढ़ लूँगा, और सेकंड रीडिंग में उसको समझ के पढ़ूंगा। तो वो मेरे को ज़्यादा मतलब पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया था वो एक किताब वाला चीज़। तो ये दो चीज़ें मतलब मुझे लगा मैं भूल जाऊँ, तो आई थॉट आई विल ऐड। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम एक लास्ट, मैम सोशलॉजी के अपने सोर्सेस एक बार बता दीजिए। ये सोशोलॉजी के अक्रॉस 3 अटेम्प्ट्स मल्टीपल सोर्सेज हो गए थे। हैरलम्बस यूज़ की थी मैंने, वहाँ थे। फिर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उनके थे। तो अल्टीमेटली आई कंपाइल्ड एवरीथिंग। तो सोर्सेज डजेंट मैटर अ लॉट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आंसर राइटिंग, डिमांड क्वेश्चन की वो ज़्यादा मैटर करती है। मतलब सिंस यू आर आस्किंग द सोर्सेज क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर स्टिल फोकस्ड ऑन कंटेंट अ लॉट, कि मैं हर टॉपिक का मेरे पास कंटेंट 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 होना चाहिए। दैट विल नॉट हेल्प। आई एम टेलिंग यू, ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। मतलब एक बार एक सफिशिएंट नॉलेज हो गई आपके पास, दैट इज ओके। मतलब अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई है, then you should focus on answer writing, how, if you're addressing the demand of the question, if you're able to complete it in time, if you're answering all the parts, just focus on that ek baar. ओके मैम, थैंक यू। Anyone else? Congratulations, ma'am. So my question is that the journey is UPSC journey is so lengthy that sometimes we get lost, we lost motivation, we lose like dedication. So how to remain consistent in the study mode, and like how to keep that dedication always high in ourselves. So this is not a problem with only UPSC aspirants. This is a problem with everyone who excels in any field in the world. Nobody in this world can remain 100% motivated 100% of the time. तो फर्स्टली दिस, तो अपने से कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, बाकी सब बहुत मोटिवेटेड है। सेकेंडली, बट वॉट डिफरेंशिएट्स पीपल हु डू एंड पीपल हु डू नॉट, इट डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन रहे ना रहे, डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए। आपको मन करे या ना करे, अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है, इतना पता होना चाहिए आपको। अगर आप अपने मन के भरोसे चीज़ें करने लगेंगे फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल होता है, इधर उधर भागता है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर डिसिप्लिन्ड, बस। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन वाली क्वालिटी है तो कोई मोटिवेशन मैटर नहीं करता फिर। और पता है काफ़ी बार डिसिप्लिन से मोटिवेशन आता है। मतलब ये तो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है। मन नहीं कर रहा उस टाइम पे, बट टाइमली उठे, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जितने बजे उठना है, या कोई भी जैसे जिम जाने का मन नहीं कर रहा बट गए, उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है डिसिप्लिन में रहना। बट जब वो एक्सरसाइज पूरी हो जाती है ना, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, है ना। एंड यू फील कि नहीं यार मैं आई एम गुड, आई एम ऑन ट्रैक मैन। ठीक है ना। बाद में बहुत मोटिवेशन, तो यूजुअली डिसिप्लिन से मोटिवेशन भी आता है। तो ये भी सर कभी एक्सपीरियंस करके देखना इस चीज़ को।
बाद में मतलब हमेशा बहुत अपने बारे में थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हाँ यार, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. Another thing is you can try is removing all your distractions. हर किसी को अलग अलग चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो एक अपने आसपास का डिस्ट्रैक्शन हटा लो. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर डिसिप्लिन. दैट ब्रिंग्स अस टू सोशल मीडिया. मतलब एक ये चीज़ थी, तो सोशल मीडिया बून भी है बेन भी है. आपसे ऐसे भी लिखवा सकता हूँ मैं इस चीज़ पे. तो बट प्रैक्टिकली आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब फॉर सम पीपल इट बिकम्स वेरी एडिक्शन, मतलब वेरी एडिक्टिव. तो आपके हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए, मतलब हाउ टू मैनेज दिस सोशल मीडिया थिंग? या फिर आप मतलब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे बट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते थे, या फिर आपने पूरा का पूरा बंद कर दिया था? हाउ इज इट? सर इट्स अ वेरी पर्सनल कॉल. पीपल मैनेज देयर सोशल मीडिया वेरी डिफरेंटली. मेरे पर्सनल केस में मुझे ऐसा लगा था कि अगर 1% का भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है एंड इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी बेनिफिट एट ऑल्सो, वाई डू इट? सो आई क्लोज्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन टाइम. वंस एवरीथिंग वॉज डन आई रीओपनड इट, बट प्रेपरेशन टाइम पे मैंने सब कुछ बंद कर दिया था. तो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी. बट लोग करते भी हैं साथ साथ, दे यूज इट एज अ पास टाइम एंड दे आर एबल टू मैनेज इट. दैट इज ऑल्सो ओके इफ यू आर एबल टू डू इट, बट फॉर मी आई डिसाइडेड टू क्लोज इट. सो माई थॉट प्रोसेस मतलब इसमें ये था कि यार अगर देखना भी है तो शॉर्ट्स मत देखो, बिकॉज उसमें अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता है. कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ जो आपकी यूपीएससी से रिलेटेड भी है और थोड़ा सा आपको ब्रेक भी फील हो रहा है, तो उसको मतलब जस्ट लिसन टू इट, या फिर उस तरीके से तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब उसका बेनिफिट वगैरह हो जाए. तो ये है. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you. Ma'am, firstly, congratulations for cracking exam in all 3 attempts. Ma'am, I have a doubt that few minutes before, ma'am has said that mathematics is one of your favorite subject, and you also started preparing for IIT for this. Then why you haven't chosen mathematics in UPSC? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैड ओनली 10 months टू गिव माई एग्ज़ाम. तो 10 months में मुझे जीएस और मैथ्स एक साथ नहीं प्रिपेयर हो पाता, तो आई चोज सोशोलॉजी. एंड सेकेंडली सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा. मैंने कॉलेज में आई डिड वन कोर्स, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, तो उस वजह से आई चूज सोशोलॉजी. Okay, ma'am, thank you. तो आज के टाइम पे मतलब हाउ शुड अ स्टूडेंट अप्रोच चूजिंग ऑप्शनल? सर 2-3 चीज़ें द स्टूडेंट शुड लुक एट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको सोशोलॉजी बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेंथ नहीं है देन यू शुड नॉट डू इट. मैथ्स अच्छा लगता हो लेकिन आपके पास वो टाइम नहीं है या कुछ नहीं है, तो यू शुड वन थिंग. सेकेंड थिंग इज लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ऑप्शनल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का बहुत इफ़ यू पुट इन द एफर्ट यू विल गेट द रिजल्ट्स, यू कैन फिगर आउट वॉट वर्क्स वॉट डजेंट वर्क, बट इट इज़ अगेन वेरी टाइम टेकिंग. इट्स अ वेरी लेंथी ऑप्शनल. सोशियोलॉजी में वो राइटिंग स्किल आपको चाहिए लेकिन ख़त्म भी जल्दी हो जाता है. तो ऑल ऑप्शनल्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, सो लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स. थर्ड थिंग इज लुक एट द सिलेबस एंड PYQ. अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू आर एबल टू डू इट इन अ सर्टेन वे, देन मे बी यू कैन थिंक ऑफ चूजिंग दैट ऑप्शन. दीज आर द फैक्टर्स. तो एक ये भी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स एट टाइम्स यूज दैट आई शुड चूज अ ऑप्शनल व्हिच हैज लाइक मैक्सिमम ओवरलैप विद जीएस. तो आपके हिसाब से इट्स लाइक अ very critical factor which should go into a person's decision, or it does not matter that much? सर इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. जैसे मेरे केस में फॉर एग्जाम्पल आई हैड ओनली 10 months, तो दिस बिकेम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि थोड़ा सा ओवरलैप फ़ायदा करेगा कम टाइम है तो. बट इफ़ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देन द अदर फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं उस सब्जेक्ट में, आपका बैकग्राउंड क्या है. दीज फैक्टर्स आर अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन ओवरलैप विद GS. अब ज्योग्राफी क्यों नहीं लिया? मतलब योर पीपल से दैट ज्योग्राफी इज लाइक सेमी साइंस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, ओवरलैप भी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी, तो व्हाई नॉट ज्योग्राफी? Sir, I was never interested in geography. मतलब when I went through the optionals, I started with elimination कि ये तो मुझे कभी नहीं लेना है. स्कूल टाइम में नहीं पसंद था आपको ज्योग्राफी? ठीक ठीक लगता था सर, not like very interested. So I had to choose between these only, sociology, maths, anthro. So sociology was small and I had a lot of interest in that subject. So it was an easy choice for me. So let us move to the next aspect. So I'll try to maintain some continuity. We were at the preparation part. So how to, like recently some of the students have also given, how many of you gave prelims this year? So we have like 7 to 8 students who have given prelims this year. तो इन लोगों ने भी कुछ किया होगा लास्ट के 20 दिन में, ठीक है ना? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी इन द लास्ट 20 days और लेट्स से लास्ट 1 month विद रिस्पेक्ट टू रिविजन या टेस्ट लिखना है या नहीं लिखना है? तो लास्ट की 20 days में आप मतलब क्या करते थे?
for prelims. फॉर प्रीलिम्स? और फिर मतलब हो सकता है मे बी यू हैड सम स्टैगर्ड अप्रोच ऑल्सो कि अच्छा लास्ट 15 डेज में ऐसा करूँगी बट लास्ट 5 डेज में आई चेंज गियर्स लाइक दिस, तो कुछ ऐसा था आपका स्ट्रैटेजी? Sir, main 2-3 things I followed. One was PYQs. End tak I used to keep in touch with PYQs, and I used to solve PYQs matching with official answer keys, not with any coaching key, but with the official key. And I used to go through the wrong options also, क्योंकि वो रॉन्ग ऑप्शंस अगली बार कई बार बन के आ जाते हैं. एंड यू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दे रहा है, किन एरियाज को इंपॉर्टेंस दे रहा है. सो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग वाज आई यूज्ड टू रिवाइज माय स्टैटिक पोर्शन अगेन, क्योंकि स्टैटिक में माय फैक्टर वाज कि इसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव रिवाइज्ड. अनदर थिंग वाज सर, अगर करंट के कुछ मेरे नोट्स हैं तो आई विल रिवाइज दोज नोट्स. एंड लास्ट के 1 मंथ में सर मे बी अ वीक बिफोर आई स्टॉप गिविंग टेस्ट ऑफ एनी कोचिंग टेस्ट, बट उससे पहले तक आई वॉज गिविंग टेस्ट एंड आई वॉज मेकिंग श्योर डूइंग दैट एनालिसिस कि कहाँ पे मैं वीक हो रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स में दोबारा रिविजन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, टू गेट द हैंग ऑफ इट. मतलब वो 2 घंटे में किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है वो रिवाइज कर लेती थी मैं. एंड लास्ट 7 days में आई यूज टू डू ओनली PYQs एंड CSAT ऑल्सो आई यूज टू डू. तो जैसे आपके पास टाइम बहुत कम था, ओवरऑल 10 मंथ्स थे आपके पास, तो क्या सब सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए थे और उनको आप रिवाइज करते थे, और यूज टू लाइक जस्ट रीड द हाइलाइटेड पार्ट्स इन द बुक्स? Sir, as I said, note making was not my strength, and this I understood very early on in the preparation. But reading was my strength. I could read very fast. So I modified my strategy accordingly. So वही pencil से highlighter वाला. So for all the books, जिसमें जैसे Spectrum और Lakshmikant, for those books, so I definitely followed this strategy कि only the highlighted portion I will revise. And for prelims, sir, there are standard books for most of the subjects. So I followed this strategy. But for mains, it was different. Means में थोड़ा scattered रहता है. So we have to prepare notes for certain topics. There is no option. For example, ethics, I had to prepare notes because scattered tha, alag-alag jagah tha, and I needed some syllabus-wise examples and notes. So ethics में I prepared my notes. But for prelims, I don't think I prepared notes as such. And end में अगर ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही याद नहीं हो रही है and very important, for example, some art and culture terms, some ancient history terms, those I used to note down and revise maybe before the exam. या फिर कोई maps हैं geography के, national parks है, tiger reserves, those I used to prepare some notes and those I revised. That's it. मेंस की the PYQ of mains, did you used to make short notes of those PYQs कि इनका आंसर मैं ऐसे ऐसे लिखूंगी, कुछ ऐसा? Not for PYQs, sir. What I followed for mains for different GS papers was for, let's say, GS3. For GS3, I had my one folder and whatever important learning I had, because इतना याद तो रहता ही है कि हर चीज़ के notes बनाने की ज़रूरत नहीं है. But in the last 1 week, I should have some notes which I can very quickly revise and which I know I have to implement in the paper. So, for example, on one page I wrote all my conclusions कि ये 15-20 चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल विकसित भारत, $5 trillion इकोनॉमी, एंड इस तरीके से मैंने बहुत सारे कंक्लूजन्स बना लिए थे. एंड सो आई प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर द एंटायर GS3. कंक्लूजन के नोट्स हो गए, डेटा के नोट्स हो गए, सम रिपोर्ट्स के अलग से नोट्स हो गए, एग्रीकल्चर के अलग से नोट्स हो गए. और इफ देर इज सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन द न्यूज़ जो चल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत न्यूज़ आती है, तो फॉर ईच ऑफ द टॉपिक्स कुछ बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स है तो उसके नोट्स हो गए. सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट के. सो दीज काइंड ऑफ नोट्स आई प्रिपेयर्ड इन वन फोल्डर, बट उसके अलावा आई डिड नॉट प्रिपेयर अलग से. Okay. Then you have done this thing, मतलब this consistency thing is also very amazing with you. So although you hinted at it, but like in the exam, like on the day of the exam, what used to be your like strategy? You talked about your 3 rounds, so you followed that in your prelims exam also. So like did you have a specific strategy that you will, मतलब just tell us about the strategy. कुछ लोगों का strategy होता है कि मैं अपने strong subject के questions को पहले attempt करूँगा, weak subjects के बाद में. कुछ ऐसा था, कुछ एक structure? Nothing of that sort, sir. Some psychological thing with me. I used to attempt the last question first in the prelims. That is the only different thing I did. Doesn't matter at all. So I started from the 100th question and I went till the first question in my first round. So I did all the questions and I used to do it with an open mind. Because UPSC can throw any surprise. There can be a paper you will not be able to do more than 10 questions in the first round. So even if that kind of a paper comes, I used to remain very calm. That was my goal. कि no matter कैसा भी पेपर आए, I used to tell myself मैंने इतना sufficient पढ़ाई की है that I should be able to clear this. If it is tough for me, it is tough for everyone. Easy for me, easy for everyone.
तो आई यूज टू गो डू द फर्स्ट राउंड वेरी, मतलब जो एकदम 100% मुझे आता ही है, ओनली दोज आई यूज टू टिक इन द फर्स्ट राउंड. देन सेकेंड राउंड में एक बार पेपर देख लिया, तो उसके बाद सेकेंड राउंड में दोबारा से आर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग इवन मोर कि अच्छा ये पहले पढ़ा था, कुछ और भी हो सकता है, तुम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं. देन सेकेंड राउंड में आई यूज टू मार्क इवन मोर क्वेश्चंस. फिर थर्ड राउंड में आई यूज टू मार्क दोज क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते थे. एंड फाइनली जब इतना होने के बाद अगर टाइम बचता था, आई यूज टू गो फॉर अ फोर्थ राउंड. एंड फोर्थ राउंड में आई यूज टू बबल साइमल्टेनियसली. So this is how I did prelims. More important in prelims was the mindset aspect, sir. मतलब every year there is a surprise in prelims, and it will continue to happen most probably. So when you are attempting the paper, we have to remain very calm. We might know some question, we might not know any question. Anything can happen in the paper. But if we are calm, if we have that presence of mind, if we have practiced sufficiently, if we have studied sufficiently, we should be able to sail through. So what used to be your level of aggressiveness? मतलब out of 100 questions, how many you used to attempt? So I used to attempt 90 to 93 questions, but I got this number after attempting multiple tests. So I tried all permutations and combinations in my test. I attempted less number of questions, more number of questions, and somewhere around this number, I understood that I'm getting good marks. But again, I was not like कि 92 ही करके आना है एग्जाम में. अगर एग्जाम में कुछ और सरप्राइज आ गया, कुछ हो गया, तो आई शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो एग्जाम में आई अटेम्प्टेड 90 to 93 ओनली. So one very interesting and very important thing which I'm noticing about you is that you spent a lot of time on yourself, on analyzing your strengths, your weaknesses, your pitfalls, right? For example, ये वाला भी जो आपने बताया कि मेरे लिए the best number of questions कितना है, ठीक है ना, कम भी अटेम्प्ट किया, ज़्यादा भी अटेम्प्ट किया. सो देखो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, राइट. तो थोड़ा सा हमको सेल्फ अवेयरनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर अस, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस, ठीक है. तो वो माइनर ट्वीक्स होने चाहिए. अनदर अमेजिंग थिंग अबाउट यू इज़ दैट योर एथिक्स मार्क्स हैव बीन वेरी वेरी गुड थ्रू आउट योर 3 attempts, right? So like what should be the approach towards ethics? People have specific issues like philosophical thinkers के बारे में बहुत लोगों को trouble रहता है काफ़ी बार. तो what was your approach with respect to the philosophical thinkers, right? And second, did you combine the current affairs and the thinkers in the case studies? What was the approach? Any big source for the case studies? Sir, ethics में my strategy was कि firstly the syllabus is very small. That is the best part about ethics कि syllabus है ही नहीं बहुत ज़्यादा. तो preparing your own notes for the syllabus, if you give 1 week, you should be able to prepare your notes if you have studied, if you're clear with the concepts. So I prepared my own notes first. Whatever sources I had, I prepared my own notes syllabus wise, and I wrote some examples also there. But this is only like 10% of ethics. 90% of ethics is practice. Once we start practicing, once we start writing answers, हमारे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद आने लगते हैं, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विच वी आर एबल टू फाइनली रेप्लिकेट इन द एग्जाम. तो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन द प्रैक्टिस. मतलब बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस 3 months, ethics was one constant thing which I practiced every day of 3 months. So I used to write 2 case studies every day and 2-3 section A answers every day. So this is something which I believe practice is most important. Secondly, sir, with respect to case studies, I use this document 80 case studies. I think it's from your coaching only. I don't remember. कुछ था 80 case studies का एक document आता है. तो I used that document. That was a very good source for case studies. And I used toppers copies. तो ये दोनों चीज़ें मिला के I used to write 2 case studies every day. I used to gain some insights. Self analysis. कि if there is a particular case study on private sector, let's say, or there is a particular case study on environment, these are the kind of values which should be displayed. These are the kind of keywords which should be there. So I made a separate Word doc and I wrote it there कि इस तरह की केस स्टडी में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए. एंड आई डिड इट फॉर मंथ्स. सो ओवरऑल एंड तक आते आते फॉर एवरी पॉसिबल केस स्टडी आई हैड सम यूनिक सम इंसाइट इन माई माइंड कि ये आना चाहिए केस स्टडी में, एंड आई वॉज एबल टू रेप्लिकेट इट इन द एग्जाम. सिमिलरली विथ सेक्शन ए, another thing which helped me, sir, was I diversified my examples. So usually क्या होता है कि we write our examples of civil servants only, but ethics is everywhere. Ethics is in IR, ethics is in history, ethics is in constitution. So we can pick our examples from anywhere, any source. So I used to write examples from each and every place in my answers, and I used to create examples also, hypothetical examples. So I think these things differentiated
my answers. Ethical dilemmas are मतलब like when I teach history, I try to highlight this thing कि ethical dilemmas are, you know, history is filled with ethical dilemmas, right? So तो मतलब one should develop a keen eye, right, with respect to that. So that's very interesting. And टाइम कैसे डिवाइड किया? सेक्शन 1 को कम टाइम दिया, सेक्शन 2 को ज़्यादा टाइम दिया या कुछ Next, ऐसा? I give almost equal time. I started with section A. I gave 1.5 hours to section A and 1.5 hours to case studies. That was equal for both. Okay. Then another amazing thing about her is that she has been very consistent with respect to very super performance in the interview. In the first interview, she got 201. In the second, she got 193, and this time 210. Right. So therefore, can you tell us about the experience of the interview? Sir, interview. ऐसा तो नहीं बोला तुम फिर आ गए? Right? कोई same board members repeat हुए? नहीं? Sir, interview was one stage of the exam which I enjoyed the most, and this was one reason I think I scored. Because whenever I talk to people, I always thought of it as an opportunity to talk to such senior, eminent folks, and who are there to listen to me. So I really enjoyed those 20-25 minutes. That was, I think, one thing which helped me score. Second, sir, I used to display a lot of energy in my interviews. So they are taking interviews since the morning, they are listening to people, and suddenly someone comes in who is full of energy and positivity. People love to hear to those kind of people. So that is one thing I followed. Another thing is I went through the UPSC notification. They mentioned certain qualities which are being tested in the interview: mental alertness, knowledge of social issues, something. So whenever I used to think about answers, I used to read transcripts and think in my mind what sort of answer I would have given. And then I give that answer, and then I used to see, am I displaying any of those qualities mentioned? If not, I tried to change my answer a bit to display that particular quality also. So this is one way I tried. Another thing is, sir, even though it seems like we can prepare a lot for the interview, we should prepare. We should prepare our DAF very thoroughly. We should prepare current affairs very thoroughly, because that gives us a lot of confidence. Another thing we should work on in preparation is our own personality. We should think what an ideal civil servant for you looks like. For me, it was someone who is very positive, who is able to take the lead, who can see the positive in the most gloomy situations. And that is how I changed myself from within. Not just for those 20-25 minutes. I made it a point कि इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे अगर ये क्वालिटी सच में मेरे अंदर आ गई तो आई विल बिकम अ बेटर पर्सन. तो आई inculcated those qualities day in and day out in me when the interview notification came. So I think that is one thing that helped. तो यूजुअली मतलब पीपल आर वेरी एंक्शियस, तो एंग्जाइटी फील नहीं हुई या मतलब यू सेड दैट यू रियली एंजॉयड द इंटरव्यू, यू डिड नॉट फील एंक्शियस? Sir, everyone feels anxious. It's very, very natural because you have prepared, you have reached this stage, and then the moment comes. But that is again a test, because when you are actually in the service, there will be moments of anxiety, but you have to go through them with a lot of calmness. So I thought of interview as that point only, that it is a test of me being a good civil servant. That if I am able to go through such an important stage of my life with calmness, with happiness, then I can do anything in life. So I made it a point that I'll enjoy these 20-25 minutes. If I am anxious, I'll definitely score low. So let us keep anxiety behind and let us enjoy these 25 minutes. I'll do my best. I'll show them what kind of a person I am, and the rest is in God's hands, whatever marks they'll give. Any bouncer question which like really stumped you in these 3 interviews कि यार ये क्या पूछ लिया? Sir, I remember this one question from my first interview. Although it was not a bouncer question, but they asked my stand on beauty pageants. What do you think? Should they be done? Should they not be done? So that was one question. I think that was, and most of my interview was actually not related to DAF. So all of it seemed like a bouncer question. So how did you approach? Sir, one thing which I believe UPSC rewards a lot is integrity and honesty. So I always answered what I actually felt. I never tried to, people say you have to balance your answer, you have to take this stand, that stand. I always thought that think like a civil servant and think what your stand is and stick to it. No matter what the world says, if you think this is it, just stick to it. So this is the approach I followed. If there was a stand in my mind,
I always took that stand and I stuck to it till the end. So, how a civil servant should think? Did you follow any source for it? Like there's like CCS rules are there, right? Then I think the Nolan committee reports, etc., are also there. Did you take any hint from there that okay, this is how a civil servant should ideally approach a particular problem situation or anything? Sir, ethics paper in general has been a very life-changing paper, so that subconsciously was there always. But I also looked at those qualities that UPSC notification mentioned, and even more than that, I sat with myself a lot and thought and wrote down what an ideal civil servant to me looks like, what I would want to see in an IAS officer, how should she function, what kind of qualities she should display, and that was more of a self-analysis that I did. Sir. Any questions from your side? मैम मैं एक टॉपर को सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद PYQs देखो, फिर जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन का सिलेबस है वो देखो, फिर उसके बाद कंपाइलेशन करो नोट्स का। तो इन केस अगर पॉलिटी रहेगा तो उसमें लक्ष्मीकांत उसमें पढ़ाए, तो उसको मेंस में कैसे लेके आते हैं, और वो कंपाइलेशन मतलब क्या होता है, मतलब करंट अफेयर्स होते हैं, स्टैटिक होता है सब, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उसको रिवीजन करो बार बार। तो कंपाइलेशन की बाउंड्री कब मतलब कहाँ तक रहती है, वो पूरा प्रोसेस कैसा रहता है कि ये मेरा है, इसमें इसको ही मैं पढ़ूंगा एग्ज़ाम आने तक, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? मतलब इट इज़ एक्चुअली अ लिटिल टफ, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड होता है चीज़ें ना। तो मेंस में स्पेशली जीएस पेपर्स में यू कैन, व्हाट आई फॉलोड वाज यू कैन नॉट कंपाइल एवरीथिंग, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जो टॉपिक्स थोड़े स्कैटर्ड है, लेट्स से जीएस 2 में गवर्नेंस का कोई टॉपिक है, ई गवर्नेंस है, लेट्स से ई गवर्नेंस के यू कैन प्रिपेयर नोट्स एंड कंपाइल इट इन वन गो। लेकिन मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ विल यू कंपाइल कॉन्स्टिट्यूशन? यू हैव लक्ष्मीकांत, यू हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो दिस इज व्हाट आई डिड। एंड अगर कोई करंट अफेयर्स है ऐसा कुछ अलग से आ गया, इफ़ यू सी कि वो सिलेबस के किसी टॉपिक से लिंक हो रहा है, मान लो पार्लियामेंट पे कोई न्यूज़ आई है, पार्लियामेंट इज अ टॉपिक इन GS2, तो यू विद इन दैट सिलेबस यू ऐड दैट नोट, बस यही कंपाइलेशन है। सिलेबस वाइज, सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस एंड PYQ वाइज। हाँ, अगर कुछ बहुत रेलेवेंट करंट अफेयर मिल रहा है, सो यू जस्ट एड इट देयर। एंड मतलब इन जनरल आई वुड से कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है हमें। मतलब हम कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ऐसा बड़ा सा एग्जाम है, कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये कंपाइल करना है, वो नोट्स बनाने हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो फिर तो एग्जाम होगा ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल थिंग। यू थिंक ऑफ इट लाइक अ नॉर्मल कॉलेज एग्जाम, जैसे भी पढ़ते थे आप, जैसे भी अपने नोट्स बनाते थे, नहीं बनाते थे, एग्जाम में आंसर लिखते थे, रिवाइज करते थे, just keep it as simple as possible. All the strategies are equally okay as long as you are able to solve the PYQs, you are able to finish the paper on time with good writing. बट मैम उनके कॉलेज में मार्क्स नहीं आते थे, और वैसे ही पढ़ेंगे तो यूपीएससी कैसे होगा? ये भी तो एक चैलेंज हो सकता है। but I am sure कॉलेज में मार्क्स नहीं आते थे, but still everyone passed. And that too with एक दिन का पढ़ाई also people passed. एक दिन, वो सबसे ज्यादा पढ़ाई तो उसी दिन होती थी जस्ट एक दिन पहले। यार इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ जो मतलब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ऐसे ही बस बताना चाहता हूँ। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता था कि मतलब कुछ समझ नहीं आता। जैसे न्यूज़पेपर है तो मैम ने जैसे बताया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको ही आर्टिकल आ गया, तो मुझे ये नहीं पता होता था ये NDRF क्या है, ये SDRF क्या है, फिर वो कोई और एजेंसी बोल देंगे, तो मुझे माइंड में एक मेंटल मैप नहीं बनता था कि कौन सा एजेंसी किसके ऊपर है, कौन मतलब एग्जैक्टली चल क्या रहा है, व्हाट इज सिस्टम। तो मैंने एक छोटी सी अप्रोच लगाई थी जो आज के टाइम पे AI के आधार पे मतलब बहुत ज़्यादा सही रहेगी। एक बार एक न्यूज़पेपर आर्टिकल या कुछ भी पढ़ा, उसके बारे में जो बेसिक आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसमें कोई आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ साइंटिस्ट, बट बेसिक से क्वेश्चन, एक हॉरिजॉन्टल वाले 10 क्वेश्चंस, FAQ अप्रोच वैसा, तो वो एक बार मतलब एक बार AI से जल्दी से पूछ लो क्या है, तो उससे आई थिंक बहुत कुछ आइडिया ये भी लग जाता है कि अच्छा, जैसे मैं आयुषी ने शी टॉक्ड अबाउट कि भाई पार्लियामेंट इज़ अ टॉपिक, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कि जब आपने वो नोट्स बनाए और ऐड किया, आपके माइंड में 3 या 4 नए क्वेश्चंस पॉपअप करे जो बहुत लॉजिकल थे, जो कि शायद से किसी PYQ से मैच भी कर रहे कि हाँ यार ऐसा PYQ तो पूछा था। तो यू कैन यूज़ AI। इनफैक्ट ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डिड यू यूज़ AI फॉर योर प्रिपरेशन, especially the last attempt, or how can AI be used by the students? Yes sir, I did use ChatGPT यूज़ किया था मैंने। सोशियोलॉजी के लिए आई यूज्ड इट मेनली। पेपर 2 के कई बार PYQs में आंसर्स नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता,
तो आई यूज टू गिव इट अ प्रॉम्प्ट कि सोशियोलॉजिकली गिव मी द आंसर ऑफ दिस, एंड चैट जीपीटी के थ्रू आई अंडरस्टूड व्हाट सोशियोलॉजिकली एक्चुअली मीन्स. तो दैट वे आई यूज्ड, एंड PYQ सॉल्यूशंस के लिए आई आल्सो यूज्ड चैट जीपीटी. एंड वेरेवर जहाँ पे भी कहीं नोट्स नहीं होते थे, या फिर फॉर एग्जाम्पल देर इज अ टॉपिक रिसोर्सेज GS1 में, तो आई जस्ट गिव इट द प्रॉम्प्ट कि गिव मी ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. तो वो बहुत सारी लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज दे देता था, एंड दैट बिकेम अ टेम्पलेट फॉर माई आंसर कि अगर रिसोर्सेज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेक्कन रीजन में कौन सी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं. नाउ फ्रॉम चैट जीपीटी आई हैव व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, so I'll break my answer in those types of resources. So this way I used it. और जैसे आपने PYQs भी यू एनालाइज्ड अ लॉट, टॉपर कॉपीज भी देखा था आपने काफ़ी, तो कभी कोई सिमिलैरिटी मिला बिटवीन चैट जीपीटी का आंसर एंड टॉपर का आंसर? मतलब ऐसा कुछ आया, झलक आया कि अच्छा दिस इज हाउ लाइक टॉप नॉच थिंकिंग एक्चुअली हैपेंस, मतलब सिमिलैरिटीज? सर चैट जीपीटी तो बहुत मल्टी डायमेंशनल सोचता है, तो इतना तो सर आई डोंट रिमेंबर कि ऐसा कोई सब सिमिलैरिटी था. वॉट मोर देन द कंटेंट फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज आई यूज टू सी हाउ आर दे आंसरिंग, हाउ आर दे ब्रेकिंग द क्वेश्चन, हाउ आर दे स्ट्रक्चरिंग देयर आंसर, एंड हाउ आर दे थिंकिंग कि इतने कम टाइम में हाउ आर दे एबल टू जनरेट मल्टीपल पॉइंट्स. एंड फ्रॉम चैट जीपीटी आई यूज टू थिंक कि मल्टी डायमेंशनल कैसे सोचना है, कंटेंट कैसे जनरेट करना है. सो दोनों का यूटिलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट था. स्पेशली चैट जीपीटी का मतलब उसका की हॉलमार्क है, उसका लैंग्वेज मॉडल बहुत अच्छा है, तो वो एक्सप्रेशन में डेफिनेटली इट कैन हेल्प. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? या कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम. जैसे मैम मैंने अगर हिस्ट्री मैंने कंप्लीट किया है तो रिलेवेंस सब्जेक्ट कौन सा उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए, और जो सब्जेक्ट मैंने फिनिश कर लिया है उसके साथ मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो. इट्स नॉट कि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी ही करनी है, जोग्राफी ही करनी है. आप उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हो. कुछ लोग साइमल्टेनियसली भी करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट में बोर हो रहे हैं तो दे विल टेक 2 सब्जेक्ट्स एट अ वंस, तो वैसे भी कर सकते हो. नो फिक्स्ड कि हिस्ट्री के बाद यही करना है, यू कैन पिक अप एनीथिंग. अब जो हो गया है सब्जेक्ट, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं तब तक पुराना भूल जाते हैं. तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैं दिन का ना आधा 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए रखती थी, कि जो सब्जेक्ट हो गया उसको क्विकली आई विल गो थ्रू एंड रिवाइज इट, जितना भी रिवीजन हो सकता है. तो जो सब्जेक्ट होता जा रहा है उसको रिवाइज करते रहना. तो इससे क्या होगा ना, एंड तक आते आते बहुत सारे रिविजन्स हो जाएंगे, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. मैम जैसे न्यूज़पेपर मोर देन इनफ है या फिर उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? मतलब देखो वो भी टाइम पे डिपेंड करता है. जैसे मेरे पर्सनल केस में मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा था. कौन सा? द हिंदू. यू कैन पिक इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, वो भी ठीक है. द हिंदू पढ़ा था मैंने सिर्फ, एंड एंड में मैंने प्रीलिम से पहले PT 365 की थी और मेंस में मेंस 365 की थी. सेकेंड अटेम्प्ट में तो बस न्यूज़पेपर था, PT 365 करने का भी टाइम नहीं था क्योंकि रिजल्ट के शायद 4-5 दिन बाद ही प्रीलिम्स था, तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा था. एंड लेकिन मेंस में मेंस 365 की थी. थर्ड अटेम्प्ट में सेम, ओनली न्यूज़पेपर एंड मेंस 365, यही किया था मैंने. थैंक यू. बट दिस इज़ योर पर्सनल अप्रोच. अगर न्यूज़पेपर समझने में पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है तो इनिशियली के कुछ मंथ्स में यू कैन रीड एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो, उसके बाद यू कैन रिलाई ऑन न्यूज़पेपर. थैंक यू. Congratulations, ma'am. Ma'am, as you said, your book list was very minimal, so I am very keen to know what was the sources. Also, ma'am, जो आपका आपके पास सिर्फ 10 months थे, तो आपने सोशियोलॉजी कैसे प्रिपेयर किया इतने टाइम में, और कब तक आपने प्रिपेयर कर लिया था, और प्रीलिम से पहले कितना पोर्शन आपका हो गया था, या कितना आपने टेस्ट दे दिया था उसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज वाला पार्ट, ऐसे कुछ अलग कुछ भी सोर्स नहीं था. नॉर्मल जो सबके सोर्सेज होते हैं, जो नॉर्मल बुक लिस्ट होती है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, उतना ही प्रीलिम्स तक बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक लिस्ट उतनी ही की थी. एंड कमिंग ओवर टू सोशियोलॉजी कि उसको कैसे करा था, तो वही, बट मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हुई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. फिर मैंने जैन फेब तक थोड़ा सा और पढ़ा था, पर मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं लिखे थे तब तक, बस थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की थी तो की थी. टेस्ट मैंने कुछ नहीं लिखे थे, टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के बाद ही लिखे थे. बट दिस इज़ नॉट अ वेरी आइडियल थिंग टू डू, हमें कर लेना चाहिए पहले. मेरे पास बस टाइम कम था, दैट वाज द ओनली थिंग. अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड फोकस ऑन आंसर राइटिंग एंड राइटिंग टेस्ट इवन बिफोर प्रीलिम्स ऑल्सो इफ पॉसिबल. मैम, हिस्ट्री थोड़ा, उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल लगता है मुझे, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? जैसे कभी कभी तेलंगाना वाली बुक को कभी कभी रिफ़र करते हैं कोई, तो हम कौन सा बुक को रिफ़र करें हिस्ट्री में? वेरी गुड क्वेश्चन. देखो क्या होता है ना, यूजुअली लोगों के सोर्स क्यों डाइवर्सिफाई हो जाते हैं कि हमने अपनी कोई एक सोर्स उठाई, हमने पढ़ना स्टार्ट की, अब कोई एक नया टेस्ट आ गया मार्केट में, टेस्ट छोड़ो, कोई UPSC का ही क्वेश्चन आ गया,
जो हमारी सोर्स से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, एंड देन किसी और ने डाल दिया कि ये तो इस सोर्स से आया है, ये सोर्स पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देन वी मूव टू अदर सोर्स, देन देर इज अ थर्ड क्वेश्चन, देन देर इज अ थर्ड सोर्स. तो डू नॉट डू दैट. टेक वन स्टैंडर्ड सोर्स जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं टू रिमेन ऑन द सेफर साइड. एक स्टैंडर्ड सोर्स लो, कोई भी एंशियंट की, लेट्स से एंशियंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है. डू नॉट रेफर टू एनी अदर सोर्स, स्टिक टू दैट सोर्स, ठीक है. नहीं हो रहे हैं सॉल्व, कोई बात नहीं क्वेश्चंस, बट अगर वो सोर्स सही है, ठीक है, रीड एंड रिवाइज दैट सोर्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज, एंड में क्या होगा ना, व्हेन यू विल डू टेस्ट सीरीज प्रीलिम से 3 महीने पहले, उसमें काफी सारे गैप्स आपके कवर हो जाएंगे. पीवाईक्यूज यू विल डू, पीवाईक्यूज से गैप्स कवर हो जाएंगे. इतना सब करने के बाद भी एग्जाम में व्हेन यू हैव प्रैक्टिस इनफ टेस्ट, तो हमारी वो एलिमिनेशन की और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल इतनी बढ़ जाती है कि हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इवन डिस्पाइट डूइंग ऑल ऑफ दैट, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दैट क्वेश्चन डजंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर किसी से भी नहीं हो रहा है. वो क्वेश्चन जो सब लोग कर ले रहे हैं, जो गुड इनफ सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स कर ले रहे हैं, दोज आर द क्वेश्चंस विच क्रिएट अ डिफरेंस एक्चुअली. तो ये नहीं करना है हमें कि एक नई सोर्स आ गई तो नई के पीछे भागने लगे. अपना एक सोर्स बनाओ, स्टिक टू इट एंड रीड एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. बट ऐसा नहीं है कि गैप्स नहीं कवर करने, टेस्ट सीरीज से गैप्स फुलफिल करने हैं हमें, पीवाईक्यू से गैप फिल करने हैं. दैट्स इट, दिस इज मोर देन इनफ. बार बार सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने से कुछ भी याद नहीं रहता है एंड तक, है ना. एंड तीस जो आपने बोला था कि एंशियंट हिस्ट्री थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है, जब मैं ये सोचती थी अपने टाइम पे कि ये तो याद ही नहीं हो रहा है, ये क्या टर्म्स लिखे हैं, तो आई यूज टू थिंक इट इन अ पॉजिटिव सेंस कि बहुत ही बढ़िया है, किसी को भी याद नहीं हो रहा है, ये तो मुझे नहीं हो रहा है तो किसी को नहीं हो रहा है, मतलब सच ओवर कॉन्फिडेंस. तो ना कि नहीं हो रहा है, बढ़िया है, लोग भूल रहे होंगे, अगर मैं इसमें थोड़ा भी एफर्ट डाल लूंगी तो आई विल डू इट एंड दिस विल क्रिएट एन एज. तो जस्ट मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनी नेगेटिव थिंग एज अ पॉजिटिव थिंग, है ना. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर नहीं याद हो रहा है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट इट, जस्ट रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, एंड तक हो जाता है. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, what was your strategy for approaching code-based question in ethics? कोड बेस्ड क्वेश्चन इन Yes, एथिक्स. तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि कोट बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी कोट है तो उसके मैं रीजंस लिख देती थी कई बार कि ये कोट क्यों सही है. फिर कई बार ऐसा कोट आता था जिसका ऑपोजिट वर्जन भी पॉसिबल है, तो ऑपोजिट वर्जन भी लिख देती अगर पॉसिबल है तो. देन आई यूज टू, एथिक्स में ना सिलेबस एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है आपका. जस्ट लर्न द सिलेबस बाय हार्ट एथिक्स का, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. कि उस सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे लॉ एंड एथिक्स है, सिटीजन चार्टर है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एटीट्यूड है, ये वाले जब टॉपिक्स आते हैं ना, एंड यू लिंक विद द कोट, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. ट्राई करना एक बार ये, दिस इज व्हाट आई ट्राइड, अगर कुछ समझ नहीं आता है. That linking part is difficult. Like the code प्रैक्टिस, seems abstract. प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल. वो सिर्फ प्रैक्टिस से याद, इट इज अ स्किल. आप कोई भी स्किल सीखते हो, यू लर्न हाउ टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट टेक्स टाइम. सो आंसर राइटिंग इज ऑल्सो अ स्किल, इट विल टेक सम टाइम. तो अगर बाई चांस वो कोड का ऑथर नहीं पता है उस टाइम पे, It then also doesn't it matter. works. It doesn't matter because UPSC says what does the quote convey to you in the present context. They are not asking about the thinker or anything. And same thing would apply to the quotes based essay questions like philosophical essays. It doesn't matter who wrote it because they're not even asking it. Ma'am, so did you approach like essay format or like GS answer writing bullet point? I wrote in points. Okay, thank you, ma'am. Congratulations, ma'am, and hello, sir. My question to ma'am is, what was your approach for the essay, and like with respect to theme-based and philosophical, and how many essay did you practice before giving mains? So I wrote, I think, 7-8 essays before mains, and I did not have any very specific strategy for essay. What I did was कि interpretation should be very right. बहुत कम मार्क्स तब आते हैं जब गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, वरना एक गुड इनफ स्कोर तो आ ही सकता है ना. तो इंटरप्रिटेशन एकदम सही होना चाहिए. दूसरा फ्लो मेंटेन होना चाहिए ऐसे में, कि मैं जो भी लिख रही हूँ अचानक से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी ये बात चल रही थी, ये कहाँ से आ गई. तो जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट फ्लो. थर्ड थिंग वॉज आई यूज टू थिंक हाउ कैन आई एक्सपैंड इट, क्योंकि 12-12 पेजेस लिखने हैं, तो हाउ टू एक्सपैंड इट. तो इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स आई ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. एक बार तो वो जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फर्स्ट अटेम्प्ट में आई ट्राइड दैट. सेकेंड अटेम्प्ट में आई ट्राइड आस्किंग क्वेश्चंस, वाई, वॉट, हाउ, वेयर, व्हेन. And third attempt mein I wrote it in a flow the way it was coming to me, and all 3 attempts I scored similar marks. So everything works, everything doesn't work. तो this was it कि कैसे expand करना है. But 2 चीज़ें बहुत important होती है, correct interpretation and flow. These 2 things I have noticed in toppers copies कि ये बहुत important है, तो these 2 you should work on.
तो ऐसे का भी प्रैक्टिस यू डिड आफ्टर प्रीलिम्स ओनली? आफ्टर प्रीलिम्स। क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऐसे, तो मतलब माय गट फीलिंग इज़ कि एटलीस्ट तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस पूरा हो जाए सो दैट यू आर एबल टू लाइक बोरो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू लाइक यू नो क्रिएट एन ऐसे। तो आई प्रैक्टिस आफ्टर प्रीलिम्स ओनली सर। नाउ कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? पहले मेरा मैं भूल जाऊँ फिर, ठीक है। तो अब एक नया चीज़ जो हुआ है दैट नाउ द यूपीएससी इज़ बेसिकली आस्किंग द स्टूडेंट्स टू फिल डैफ, राइट, इवन बिफोर मतलब प्रीलिम्स, राइट, एंड you are the one who has filled DAF, scored very very good. So regarding filling of DAF, any any suggestions, any doubts which came to your mind, or you change your strategy for filling DAF? Maybe शायद से आपने थर्ड अटेम्प्ट में अपना DAF थोड़ा सा अलग भरा हो या कुछ ऐसा। कुछ लोग, जैसे मैं कॉमन डाउट्स बता देता हूँ, हाउ मेनी हॉबीज, और सर आई हैव नॉट प्लेड एनी स्पोर्ट्स, राइट, सो व्हाट शुड आई राइट डाउन इन स्पोर्ट्स? तो फिर शुड आई राइट डाउन समथिंग लाइक बैडमिंटन लिख देता हूँ या कुछ भी भर देता हूँ। तो मतलब कितना, कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए? तो Sir, I think my DAF was similar in all the 3 attempts. I did not change it much. And filling of DAF, sir, most important thing is honesty. Don't fill just for the sake of filling it कि बस भरना है तो भर देते हैं. Be honest. जो भी आपकी honestly आपकी hobby है, write it. Second, कि DAF भरने के बाद से लेकर इंटरव्यू तक sufficient time होता था, तो practice that hobby. In and out, and you should know about your hobbies and whatever you have written. ट्रस्ट मी, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आते हैं, कहते हैं सर मेरे इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं बट आई डू नॉट हैव एनी हॉबी। तो मतलब व्हाट शुड आई डू? मतलब वन शुड कल्टिवेट इट या कैसे करें? तो सर हो सकता है कि इंटरेस्ट अगर बहुत सारे हैं तो उनमें से ही जो सबसे मेजर इंटरेस्ट है, हॉबीज बेसिकली क्या है कि जब वेन एवर वी आर स्टडिंग वी नीड सम टाइम टू रिलैक्स, सो वट एवर वी आर डूइंग टू रिलैक्स दैट इज आवर हॉबी. तो इवन इफ इट इज़ वेरी सिंपल, anything we can write it, it doesn't matter as long as we are truthful, we are able to defend it and we are able to justify it. मतलब कोई बहुत फैंसी हॉबी लिखना as such कोई बहुत ज़रूरी नहीं है. as long as we are truthful and वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं, तो वो चीज़ हम अगर फॉलो कर रहे हैं we can write it. एक दूसरा डाउट स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है, तो मैंने स्कूल टाइम पे कुछ अवार्ड्स जीते हैं बट आई डू नॉट हैव लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर इट, तो मैं क्या करूँ? तो व्हाट वुड बी योर सजेशन? सर इफ़ यू आर ट्रूथफुल, आपने अवार्ड जीता है, यू नो इन एंड आउट अबाउट इट, यू आर श्योर अबाउट इट, यू कैन राइट इट. आई डोंट थिंक सर्टिफिकेट शायद यूपीएससी डिमांड करता है. स्कूल लेवल के पे नहीं जाता है बट आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स. एनी डाउट्स? मेनी ऑफ यू, सम ऑफ यू प्रिपेयर्ड अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स. आपके कुछ डैफ रिलेटेड डाउट्स हैं व्हिच यू वुड वांट टू आस्क? गुड इवनिंग मैम. मैं 2027 में फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला हूँ और मैं भी विजन आईएएस का स्टूडेंट हूँ, प्री फाउंडेशन का. तो मैं इन 2 इयर्स में अपने प्रिपरेशन को कैसे डिवाइड करूँ? मेरी अभी से अप्रोच क्या होनी चाहिए? So since you have very good amount of time, read newspaper every day without skipping, है ना. बहुत अच्छी हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ना, एंड इफ़ यू आर एबल टू कल्टिवेट इट तो 2 साल की चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी एंड यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट वेरी वेल एंड योर थिंकिंग एंड योर राइटिंग विल ऑल्सो इम्प्रूव. तो दिस इज़ वन थिंग यू कैन डू. सेकेंड इज़ स्टैटिक पोर्शन. जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, जस्ट ट्राई टू फिनिश देम एंड रीड एंड रिवाइज देम. वो कर सकते हो आप. तीसरी चीज़, जब इतना सब हो जाए देन यू कैन स्टार्ट विद सम आंसर राइटिंग ऑल्सो. मैम नेक्स्ट मंथ में मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो उस बीच अगर मेरी प्रिपरेशन लो हो जाती है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ बाद में? किस चीज़ का एग्जाम है सेमेस्टर में? मतलब व्हाट कोर्स आर यू परस्यूइंग? पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस बीए का एग्जाम है आपका? अच्छा, तो आप आराम से फोकस कीजिए. बीए का एग्जाम, इट इज़ योर कॉलेज एग्जाम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट. सो आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो यू गिव योर एग्जाम आराम से. तो उस थोड़े टाइम के लिए प्रेपरेशन कम हो सकती है क्योंकि आपके पास है अभी टाइम. तो जस्ट गिव योर एग्जाम अच्छे से, वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसके बाद यू कैन बिगिन योर प्रेपरेशन. हाँ, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ तो साथ साथ कैसे मैनेज करूँ? सो यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ टाइम कि वहाँ ओके. मैं दूँ उसका जवाब? हाँ हाँ. उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं तो आप ये करिए कि आप हर दिन क्लास मत अटेंड करिए. आप अपने नंबर ऑफ हॉलीडेज़ बढ़ा दीजिए. कैसे? संडे आपका यूजुअली ऑफ होता होगा, ठीक है. आप एक काम करिए कि आप सैटरडे को भी अपना ऑफ बना लीजिए, ठीक है. तो और जो, या फ्राइडे और सैटरडे दोनों को ऑफ बना लीजिए. जो फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस हुई हैं, ठीक है, उनको आप कहते हैं किसी एक दिन ऑनलाइन मोड में देख लीजिए,
ठीक है, बिफोर यू एक्चुअली अटेंड दी नेक्स्ट क्लास. उस तरीके से आप क्या है कि एक हाइब्रिड अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं. दैट 60% 70% ऑफ क्लासेज आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, बट 30% ऑफ द क्लासेज आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं. और वहाँ पे जो आपका ट्रैवल का टाइम बच रहा है और जो बाकी चीज़ें बच रही हैं, वो आप कंप्रेस कर रहे हैं. एक ही दिन में आप 3 क्लासेस देख रहे हैं या फिर 2 क्लासेस देख रहे हैं. तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर हॉबीज़, या फिर जो आपका जैसे कॉलेज जो आपका पैरेलल चल रहा है उसके लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दी ऑनलाइन एंड दी ऑफलाइन मोड लाइक टू योर एडवांटेज. कभी लग रहा है कि यार ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं घर से भी कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, तो ठीक है. जब उस सब्जेक्ट की क्लास हो तो आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए. या फिर आप पूरा बीच में लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो कम्प्लीटली शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, राइट. बट वो ऑनलाइन बैकलॉग मत क्रिएट होने देना, वो आप पूरा कर लेना, ठीक है. और ऐसे आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक्चुअली. जब भी आप ऑफलाइन कोई क्लास अटेंड करते हैं तो जितना टाइम का क्लास होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके आसपास 1 आवर तो ऐड हो ही जाता है, ठीक है ना, गेटिंग रेडी एंड गोइंग. तो वो आपको जो टाइम बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. Any message you would like to give like to the women community, because a lot of societal problems are still faced by women, and your mother being the only one having the responsibility to raise you, and then now you also, so therefore you two are like icons in my mind that you fought it out, right? So any message to the lead female candidates especially? Sir, female candidates face additional burdens, and we must recognize that. The only thing I would say is have faith in yourself. When nobody else believes in you, if you believe in yourself, that really helps. Because during the preparation time, apart from studies, you will face additional problems from maybe family side, financial side, and so on. But if you have decided that this is your dream, then you must give everything possible in your hands to this dream, I would say. Because to see a woman civil servant working for the society is an inspiration to many. So one woman who clears this exam becomes an inspiration to lakhs of women. So I would say that think about that future. So that कोई एक ऐसी आपकी हैबिट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रही, मतलब जिसको आप कहेंगे कि ये 2 या 3 चीज़ें थी मेरी पूरी सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं, उससे पहले आपने आईआईटी भी क्वालिफाई किया है, तो कोई 1 या 2 या 3 ऐसी हैबिट्स विच transformed you into like a very good personality also and a very successful one also? So one thing I would say is my mindset. I have whenever I have achieved something or not achieved something, I try to self-evaluate what was the difference between the two situations. So I find that the major difference is having faith in oneself. Whenever I believed that I will do it is when I was able to actually do it. So I am a very introspective person. I kept evaluating myself, kept evaluating my mindset that I am moving in the right direction. I can do this. I have to have faith in myself. So that was one thing. Second thing was discipline, sir. I am a disciplined person. I'm not a very big believer of motivation or anything, but I am a disciplined person. If I have to do it, I will do it. And third thing is, sir, not about me, but my mother. So she was a very big emotional support to me. And it was a very conscious decision to stay at home, and her support is what transformed me. Amazing. Any last message which you would like to give to the students? Keep it simple is what I always say to people. What we think of it is this exam is so huge, the syllabus is vast, and so on and so on and so forth, that we actually forget the simplicity of the exam. We run after multiple sources but forget about the syllabus and PYQ. We read 3-4 books but forget to read one book 3-4 times. We have so much of content in our mind that we forget what is the question asking actually. If there is a question, we see our word and we are like, ye to maine padha, and we start answering it like anything. But we are not even looking at ki question pooch kya raha hai. So keep it simple, study simple things, study, optimize, and when you are answer writing, just answer the demand of the question. Do not write what you know, but write what is being asked. That is what I say. Thank you, Ayushi. Well, thank you all also for being present. I hope the session was valuable to you. I loved interacting with you. Thank Same you. here, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone.